ہالی ووڈ امریکہ۔ ڈیئر سسٹر، سلام آداب۔ وقت بڑا نازک تھا، بڑی خطرناک گھڑی تھی۔ تلاشی لینے والے اس کمرے میں داخل ہونے والے تھے جس کے اندر فولادی تجوری تھی اور جس کے کوڑے دان کی ٹوکری میں خطرناک خونی منصوبے کا نقشہ چھپا تھا۔ الماری کے پیچھے میرے سفید دستانے گرے تھے جن پر میری انگلیوں کے نشان تھے جو مجھے گرفتار کرا کر پھانسی کے تختے پر پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ خدا سے دعا مانگنے کے بعد میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کو سکون ملا، اس لیے میں نے یہ سب خطرہ صرف دین اسلام کے ماننے والے امریکہ کے حبشی مسلمانوں اور امریکی مساجد کو تباہی سے بچانے کے لیے مول لیا۔ مجھے یقین تھا خدا میری مدد ضرور کرے گا۔ اس میں کوئی پیسے کا لالچ نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسری غرض تھی۔ جیسا کہ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ کیوبا کے ایک بے دین گروہ نے اسلام کے خلاف سازش کر کے اسکیم بنائی اور امریکہ کی ساری مساجد کو نعوذ باللہ تباہ کرنا چاہتے تھے اور سارے حبشی مسلمانوں اور ان کے اسلامی اسکولوں کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ اس سازش کے سلسلے میں یہاں زمین دوست فیکٹری میں مصنوعی سیارہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ مصنوعی سیارہ دنیا کے گرد چھوڑا جاتا، اس میں سے لیزر کی ہلاک کر دینے والی شعاعیں نکلتی جو زمین کے اوپر گردش کرتے جب امریکہ کے اوپر سے گزرتی تو جہاں جہاں حبشی مسلمانوں کے اسکول ہوتے، مسجدیں ہوتی، ان پر بجلی کی طرح اس سے شعاع نکلتی اور سب کو جل کر خاک ہو جاتا۔ ہمیں کسی طریقے سے اس کی خبر ہوئی، چنانچہ میں نے مصنوعی سیارے کا نقشہ چرا کر کوڑے کی ٹوکری کے اندر چھپا دیا۔ نقشہ چوری ہو جانے کے بعد سارا کام چوپٹ ہو گیا۔ مصنوعی سیارہ ابھی آدھا ہی بنا تھا۔ جب تک نقشہ مکمل ہو کر سیارہ مکمل نہ ہو جاتا اس کے لیے دوبارہ برلن اور آسٹریلیا جا کر ایک نیا نقشہ بنوانا پڑتا جو کچھ مدت میں مکمل ہوتا۔ اس دوران یہ راز کھل جاتا اور امریکہ کے مسلمان چوکنا ہو جاتے۔ امریکی حکومت اپنے ملک کے لوگوں کی زندگیوں کی خاطر فضا میں اس مصنوعی سیارے کو تباہ کر سکتی تھی، یعنی اب ایک طریقے سے اس خونی گروہ کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اگرچہ خطرے کا ہاتھی نکل گیا لیکن دم ابھی باقی تھی۔ یہ دم ایسی تھی کہ اسے ذرا سا کھینچنے سے پورا ہاتھی دوبارہ واپس آ جاتا۔ یہی میری پریشانی کی وجہ تھی۔ میرے دماغ نے تیزی سے سوچنا شروع کیا۔ میں نقشے کو کوڑے کی ٹوکری سے نکال کر کس جگہ چھپاؤں کہ کمرے کی تلاشی بھی ہو جائے، نقشہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی الماری کے پیچھے گرے دستانوں کو چھپانا بھی ضروری تھا جس پر میری انگلیوں کے نشان تھے۔ اگرچہ یہ نشان اندر کی طرف تھے پھر بھی ان لوگوں کے پاس جدید قسم کی الیکٹرانک مشینیں تھیں جن کی مدد سے دستانے کے اندر سے نشانات دیکھے جا سکتے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وقت گزر رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں تلاشی لینے والی ٹیم ہر چیز کو الٹ پلٹ رہی تھی۔ آخر میں نے ایک زبردست خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا۔ میں جلدی سے ٹوکری میں ہاتھ ڈال کر خونی نقشہ باہر نکال چکا تھا۔ یہ مومی کاغذ کا تھا جس کے 8 بڑے بڑے ٹکڑے طے کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان کاغذوں کو اپنی نیکر کے نیچے کر کے اپنی ران کے اوپر کر کے باندھا اور نیکر اوپر کر کے پیٹی کس کر باندھ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اپنی ران کے ساتھ ایٹم بم باندھ لیا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ میں دستانے نکالنے کے لیے الماری کے پیچھے جانے لگا۔ دروازہ کھلا، تلاشی لینے والوں کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ میں وہیں کھڑا کا کھڑا رہا، جو کر چیزوں کی صفائی کرنا شروع کی۔ میرے ہاتھ میں جھاڑ پوچھ کرنے والی جھاڑن تھی۔ میں نے ادب سے سب کو سلام کیا، ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تلاشی لینے والوں کے چہرے بڑے کرک تھے، کسی نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہ کل 6 آدمی تھے، ان کے ساتھ رائفل والے اور مشین گن والے 4 لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ کمرے کی تلاشی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے تجوری کو کھولا، اس کے خانوں کو دیکھا، اس کی تصویریں اتاری۔ تجوری کے دروازے پر سفید پاؤڈر لگا کر انگلیوں کے نشان لینے کی کوشش کی پر وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اس الماری کے پاس آئے جس کے پیچھے میں نے دستانے اور بے ہوشی کی دوائی والا پیکٹ پھینکا تھا۔ میرا خیال تھا وہ الماری کے پیچھے نہیں دیکھیں گے مگر انہوں نے سب سے پہلے الماری کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ 1 منٹ میں انہوں نے دستانے اور پلاسٹک کا لفافہ باہر نکالا۔ یہ لوگ ماہر تھے، پھر ان کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے۔ انہوں نے دستانوں کو کھول کے اس کے اندر ایک نظر ڈالی، پھر پلاسٹک کے لفافے کو سونگا۔ ایک جاسوس نے اس کے اندر دوائی کے صفوف کے چند ذرے ہتھیلی پر گرا کر زبان سے چکھا اور تھوک دیا۔ اس پہ بے ہوشی کی دوا تھی جو پیالی میں ڈالی گئی۔ یہ دستانے چور کے ہیں، اس کے اندر کی طرف چور کی انگلیوں کے نشان موجود ہوں گے، اسے لیبارٹری میں بھجواؤ تاکہ انگلیوں کے نشان لیے جائیں۔ میں کانپ گیا، اب میں نہیں بچ سکتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس ریکارڈ میں ہماری انگلیوں کے نشان تھے۔ دستانے کے اندر والے نشان جب ریکارڈ میں میری انگلیوں کے نشان سے ملائے جائیں گے تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، مجھے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، پھر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے گی، خطرناک نقشہ بھی برآمد ہو جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، دل میں خدا سے گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگا کہ وہ میری مدد کرے۔ یہ خدا پر میرا بھروسہ تھا کہ جس نے اس نازک وقت میں میری حفاظت کی، نہیں تو میں بے ہوش ہو سکتا تھا، پھر سارا راز کھل جاتا۔ نقشہ میری ران سے بندھا تھا۔ اب وہ لوگ کمرے کی دوسری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ بڑا جاسوس میری طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ یاد ہے؟ اندر کا کوئی آدمی آیا تھا باہر یا باہر کا کوئی اندر گیا؟ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، نہیں جناب، صرف ایک بار دروازے پر جیسے کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہ تھا۔
پھر وہ میرے قریب آیا. خوف سے میرے ہونٹ خشک تھے مگر میں نے اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھا. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر میری انگلیوں کو غور سے دیکھا پھر چھوڑ دیا. خدا جانے سے مجھ پر شک تھا یا وہ مجھے خوفزدہ کر رہا تھا. وہ مسکرایا. تم پریشان کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں, ہم اصل چور کو جلدی پکڑ لیں گے. پھر اس نے گردن موڑ کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ردی کی ٹوکری کو الٹا جائے. آخرکار وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا. اگر اس وقت نقشہ ٹوکری کے اندر ہوتا تو میں پھنس جاتا. نقشہ بھی ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل جاتا. 3 آدمیوں نے بڑھ کر ٹوکری کو الٹا. کاغذوں, گتوں کے ٹکڑوں اور لوہے کی بیکار چیزوں کو ٹٹول کر نقشہ تلاش کرنے لگے مگر نقشہ نہ تھا. وہ تو میری ٹانگ کے اوپر بندھا تھا. اتنے میں ایک جاسوس نے کہا, اس لڑکی کی بھی تلاشی لینا چاہیے. اتنا سننا تھا. میں اپنی جگہ پتھر ہو گیا. اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ جملہ ایسے تھا جیسے کوئی کہے کہ اس لڑکے کو گولی مار دو. میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا. وہ جاسوس میری طرف بڑھا کہ میری تلاشی لے. وہ تلاشی لیتا تو اسے نقشہ میری ٹانگ کے ساتھ بندھا مل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر میری مدد کی. جو ہی وہ جاسوس میرے قریب آیا بڑے جاسوس سے چیخ کر کہا, وقت ضائع نہ کرو, دوسرے لوگ باقی ہیں, ان کی تلاشی لو. اس کی تلاشی لے کر کیا کرو گے؟ حالانکہ اسے صرف اور صرف میری تلاشی لینے کی ضرورت تھی. ان کا سارا مسئلہ حل ہو جاتا مگر جب اللہ کسی کو بچاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہ دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے. آدمی خزانے کے بالکل قریب سے ناکام لوٹ جاتا ہے. جاسوس ابھی میری تلاشی لینے والا تھا. بڑے جاسوس کی ڈانٹ سن کر وہیں سے واپس ہو گیا. تلاشی لینے والی ٹیم کمرے سے نکل گئی. میں نے سکھ کا سانس لیا. مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ان درندوں سے بچ جاؤں گا, نقشے کے ساتھ زندہ سلامت رہوں گا. سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دل سے خدا کا شکر ادا کیا. اس نے مجھے دہکتی آگ میں گرتے گرتے بچایا. لیکن ابھی ایک تلوار میرے سر پر لٹک رہی تھی. وہ دستانے لیبارٹری میں پہنچ گئے جس کے اندر میری انگلیوں کے نشان تھے. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد میرا راز فاش ہونے والا تھا. اس پہ میری گرفتاری یقینی تھی لیکن اب مجھے یقین تھا خداوند نے مجھے بڑے حادثے سے بچایا ہے. وہ یہاں بھی میری مدد کرے گا. اب میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے فرار ہونا چاہتا تھا. گھڑی دن کے 11:30 بجا رہی تھی. وہاں سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا. عام حالات میں کسی نہ کسی طرح بیماری کا بہانہ بنا کر اور اپنے ڈیڈی کی سفارش دلوا کر باہر نکل جاتا لیکن اب حالات بدل گئے. اب کسی چڑیا کو فیکٹری کے اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہ تھی. اگر میں پیٹ میں درد کا بہانہ کرتا تو پیٹ درد کی دوا وہاں موجود تھی, ڈاکٹر موجود تھا. ایسی صورت میں میرے پیٹ پر مالش کرتے ان کی نظر میری ٹانگ پر بندے نقشے پر پڑتی. جو وقت گزرنے لگا میری بے چینی بڑھ رہی تھی. میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھا. میں ساتھ والے کمرے میں جا کر سو سکتا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی رات کے 12 بجے سے لے کر دن کے 7 بجے تک ہوتی. آج تو خاص طور مجھے بلوایا گیا تاکہ میرے سامنے کمرے کی تلاشی ہو. میں تجوری والے کمرے سے نکل آیا. تلاشی لینے والے خطرناک جاسوس تیسرے بڑے کمرے کی تلاشی لینے لگے. سونے والے کمرے میں آ کر میں لوہے کے پلنگ پر بیٹھ گیا. مجھے وہاں چین نہ آتا تھا. کسی بھی وقت میری انگلیوں کے نشان دیکھے جا سکتے تھے. ایک آدمی کمرے سے نکل کر میرے پاس آ کے مجھے گرفتار کر سکتا تھا. مجھے اچھی طرح اندازہ تھا اس وقت دستانے کے انگلیوں کے نشان کاغذ پر اتار کر بڑے کمرے میں تمام کام کرنے والوں کے انگلیوں کے نشانات سے ملائے جا رہے ہوں گے. میں پلنگ سے اٹھ بیٹھا. ایک سیکنڈ قیمتی تھا. مجھے کچھ نہ کچھ فوراً کرنا تھا. میں یوں ہی کمرے کی طرف چل پڑا جہاں ساری فیکٹری کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے ایک لفٹ کے ذریعے اوپر جاتا تھا. پھر وہاں سے ایک بڑے کوڑے ڈپو میں جمع ہوتا. میں چونکہ وہاں کام کرتا تھا اس لیے کسی کو میرے چلنے پھرنے پر شک نہیں تھا. میں جو ہی چھوٹے کمرے میں داخل ہوا کوڑے کا ایک ڈھیر آٹومیٹک مشین کے پٹے کے ذریعے لفٹ کی طرف جا رہا تھا. مجھے کچھ نہ سوجی. میں لپک کر کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ گیا. گتے کے ڈبوں, لوہے کے اسکریپ اور کاغذ کے ٹکڑوں نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا. یہ ڈھیر لفٹ کے اندر گیا. لفٹ نے اپنے آپ گھر گھر کی آواز سے اوپر اٹھنا شروع کیا. لفٹ اندھیرے کنویں میں اوپر کی طرف چلی جا رہی تھی. میں کوڑے کے ساتھ اوپر جا رہا تھا. 2 منزلیں اوپر چڑھنے کے بعد زمین کی سطح آئی. لفٹ رک گئی. ایک چوکور سوراخ میں سے دن کی روشنی نظر آئی. کوڑے کا ڈھیر اس سوراخ میں سے گزر کر اپنے آپ ایک بڑے ڈپو میں جا گرتا. میں بھی کوڑے کے ساتھ ڈپو میں ایک بڑے ڈھیر پر گر پڑا. یہ ساری فیکٹری کا کوڑا تھا. یہاں سے کوڑا ٹرکوں میں بھر کر دور پہاڑیوں میں لے جایا جاتا تھا. ہفتے میں ایک بار ٹرک آ کر کوڑا لے جاتا. میں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. یہ کوڑے کا ڈپو فیکٹری کے احاطے میں ایک دیوار کے ساتھ تھا. سامنے کچھ فاصلے پر فیکٹری کا گیٹ تھا جہاں 2 مشین گن والے پہرے دار پہرا دیتے تھے. ہنگامی حالت کی وجہ سے وہ سامنے تھے حالانکہ وہ پہلے چھپ کر پہرا دیتے. میں ڈپو کی اینٹوں کی دیوار سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھنے لگا. میں فیکٹری کی پھانسی کی کوٹری سے نکل آیا مگر ابھی تک جیل خانے کے اندر تھا. اتنے زبردست پہرے سے میرا نکلنا ایک معجزہ تھا مگر جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو دنیا میں معجزے ہوتے ہیں. فیکٹری کا دروازہ بند تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے پر جو کانٹے دار تار چڑی ہے اس میں بجلی کی رو دوڑ رہی ہے. فیکٹری کی عمارت کے گرد جو دیوار تھی اس کے اوپر یہی کانٹے دار تار لگی تھی. اس میں بھی بجلی دوڑ رہی تھی. میں اگر دیوار پلانگنے کی کوشش کرتا تو بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو جاتا. میں ڈپو کے اندر کی طرف دیوار کے سوراخ میں دونوں پاؤں پھنسائے تھوڑا سا سر باہر نکالے باہر کا منظر دیکھنے لگا. سارا ڈپو کوڑے کرکٹ سے بھرا تھا. اگر وہاں کوئی آ جاتا تو میں کوڑے پر چھلانگ لگا کے اس کے اندر چھپ جاتا مگر سوال یہ تھا آخر میں کب تک وہاں چھپتا. کوڑا لے جانے والا ٹرک ہر اتوار اور پیر کی شام کو آتا. اس روز منگل کا دن تھا.
मैं 4 दिन इस कूड़े के डिपो में बगैर कुछ खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता था। फिर ये खतरा था जब फैक्ट्री में बड़े जासूस को मालूम होगा कि दस्तानों में मेरी उंगलियों के निशान हैं और मैं गायब हूँ, तो वो लोग मुझे तलाश करते करते इस कूड़े के डिपो में पहुंच जाएंगे, मुझे आसानी से गिरफ्तार कर लेंगे। वो भी बड़े मक्कार जासूस थे, कोई बच्चे तो नहीं थे। वो जानते हैं कि लिफ्ट के जरिए कूड़े के ढेर से बाहर निकला जा सकता है। अगर मैं कूड़े के अंदर छुप भी गया तो वो इसी जगह कूड़े को आग लगा देंगे और फिर मेरे लिए 2 ही रास्ते हैं, या कूड़े से निकलकर अपने आप को मौत के हवाले करूं या शकरकंदी की तरह अंदर ही अंदर जल के राख हो जाऊं। मैंने फैक्ट्री के बड़े दरवाजे को गौर से देखा। वहां 2 सिपाही मशीन गन उठाए पहरा देते थे। मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मैंने निगाह ऊपर उठाकर देखी। नीले और सुर्ख रंग का एक छोटा हेलीकॉप्टर बड़ी तेजी से फैक्ट्री की तरफ नीचे आ रहा था। मैंने सर नीचे किया, कहीं ऊपर से कोई मुझे देख न ले। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के अहाते में कूड़े के डिब्बों से कोई 30 कदम के फासले पर रुका। इसके परों की गर्दिश से कूड़े के डिब्बों में कागज बाहर को उड़ गए। मैंने सर नीचे कर रखा था। हेलीकॉप्टर की मशीन रुकी तो मैंने दीवार के ऊपर से देखा 4 आदमी मशीन गन कंधों से लटकाए बड़ी तेजी से हेलीकॉप्टर से छलांगे लगाकर दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। इतने में खतरे का अलार्म जोर से चीखा। इसकी आवाज पर मेरा दिल धक धक करने लगा। इस अलार्म का मतलब था मेरा राज फाश हो गया। इन्हें पता चल गया था कि दस्तानों पर मेरी ही उंगलियों के निशान थे और मैं गायब हूँ। अब वो मेरी तलाश में थे। ये लोग इन गिरोह के खास आदमी थे जो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकता था। अगर इस वक्त मेरे पास माचिस होती तो मैं नक्शे को कूड़े के ढेर में फेंक कर कूड़े करकट को आग लगा देता। मेरे पास माचिस नहीं थी। नक्शा अगर मैं कूड़े के डिब्बों में फेंक जाता तो वहां से तलाशी के बाद इन्हें दोबारा मिल जाता। मैंने डिब्बों की दीवार से नीचे छलांग लगाई। छुप कर हेलीकॉप्टर की आड़ लेता, पहरेदारों को नजर न आऊं इसका ख्याल करता हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। ये मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान की चंद घड़ियां थी। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान वाली दीवार के ऊपर दौड़ रहा था। किसी लम्हे मशीन गन का ब्रस्ट मुझे हलाक कर सकता था। मैं खून में लूट-पोत हो सकता था। मेरे और पहरेदारों के दरमियान महज चंद कदमों का फासला था। ये हेलीकॉप्टर की ओट थी, फिर भी शदीद खतरा था। मैं हेलीकॉप्टर के दरवाजे के पास पहुंचा। खतरे का अलार्म जोर से चीख रहा था। इसकी वजह ये थी कि पहरेदारों की तवज्जो अंदर की तरफ थी। वो अंदर फैक्ट्री के दरवाजों और खिड़कियों की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे को ऊंची आवाज से पुकारते। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला था। मैं इसके अंदर दाखिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया की मुहिम के दौरान हमारी जर्मन दोस्त फ्रालीन ने हमें हेलीकॉप्टर चलाना सिखाया था, और हेलीकॉप्टर चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं, बस जरा हौसले और तवज्जो की जरूरत होती है। दोनों चीजें हम घर से लेकर इस एडवेंचर के सफर पर निकले थे। सीट पर बैठते ही मैंने भी ऐलान जंग किया और हेलीकॉप्टर के इंजन को स्टार्ट कर दिया। ये एक तरह से ऐलान जंग ही था कि तुम्हारे कीमती और खतरनाक राज में लेकर फरार हो रहा हूँ, जो करना है कर लो। हेलीकॉप्टर के पर गर्दिश करने लगे। मैंने स्टिक खींची। हेलीकॉप्टर जमीन से बुलंद होने लगा। इसके साथ ही नीचे से मशीन गनों की जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई। इन्हें पता चल गया था मैं यानी इनका असली और सबसे खतरनाक चोर इन्हें धोखा देके इनके सारे मंसूबे को तबाह करके इनका कीमती नक्शा चुरा कर इन्हीं के हेलीकॉप्टर में वहां से फरार हो रहा हूँ। कई गोलियां हेलीकॉप्टर के नीचे वाले पेड़ पे लगी, लेकिन मैंने इसे टेढ़ा करके लहराना शुरू कर दिया और गोता मार के फैक्ट्री से दूर पहाड़ियों की तरफ ले गया। फिर मैंने स्टिक खींच कर इसे और ऊंचा कर लिया। हेलीकॉप्टर अब सीधा होकर ऊपर को जाने लगा। मैंने स्टिक को दाएं की तरफ घुमाकर स्विच किया। हेलीकॉप्टर एक जगह कायम होकर सामने की तरफ उड़ने लगा। मैं जमीन से काफी बुलंदी पर था। मेरे नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां पीछे को जाती थी। बादलों की वजह से धूप नहीं थी। वादी में एक तरफ गन्ने के खेत ही खेत नजर आए जिसमें मजदूर काम करते थे। मुझे कुछ मालूम न था मैं किधर जा रहा हूँ। मैं फैक्ट्री से दूर जाना चाहता था। मेरा हुलिया इस वक्त ये था कि सिर्फ खाकी कमीज और खाकी निक्कर पहन रखी थी। पाँव में फ्लैट शूज पहने हुए थे और मैं किसी अंग्रेजी फिल्म के हीरो की तरह हेलीकॉप्टर भगाए ले जा रहा था। ये क्यूबा के शहर हवाना का खैराबाद इलाका था। आगे जाके खेत खत्म हो गए, पहाड़ी इलाका और जंगल शुरू हुए। मुझे मालूम था कि खतरा था। वो लोग वायरलेस कर चुके होंगे और अभी किसी न किसी तरफ से एक जंगी हेलीकॉप्टर नमूदार होगा, मुझ पर रॉकेट बरसा देगा। इसलिए मुझे जल्द ही किसी महफूज मकाम पर उतरना था। मैंने स्टिक पीछे करने के लिए इसे दबाया तो इसने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर स्टिक टस से मस ना हुई। इसका मतलब था हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं ले जाया जा सकता। शायद इसके अंदर कोई गोली लगी थी जिसकी वजह से कोई खराबी पैदा हो गई। मैं घबरा गया। फिर मैंने सोचा कि इसे जबरदस्ती उतारना है, मगर मैं ये भी नहीं कर सकता। अब तो इस वक्त का इंतजार करना था जब इसका पेट्रोल खत्म हो जाए और नीचे गिरकर तबाह हो जाए। ये बड़ा हौलनाक ख्याल था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने ये सोचकर स्टिक पर अपना पूरा जोर डाल के इसे दबाया। स्टिक टूट गई, मगर इसके साथ ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरना शुरू हो गया। अब इसके अंदर से खटाक खटाक जैसी आवाजें आने लगी। इसका इंजन जवाब दे गया। वो झूलने लगा। इतने में एक धमाका हुआ। एक रॉकेट जबरदस्त आवाज से मेरे हेलीकॉप्टर के ऊपर से निकल गया। वो लोग रॉकेट वाला हेलीकॉप्टर ले आए थे। अब मेरे हेलीकॉप्टर को रॉकेट मारकर तबाह
तबाह किया जा रहा था। मैंने हेलीकॉप्टर का इंजन बंद किया। वो तेजी से एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। मैंने खिड़की से देखा, दुश्मन का सुर्ख और नीला जंगी हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर था, मशीन गन की गोलियां बरसाता था। कई गोलियां मेरे हेलीकॉप्टर की छत पर लगी और मेरी खोपड़ी में घुसते घुसते बची। मैंने इंजन को दोबारा चला दिया। मेरा हेलीकॉप्टर पहाड़ी के दामन में दरख्तों पर गिर के तबाह होने वाला था। मैंने इसे फिर से ऊपर उठाया। एक जबरदस्त धचका लगा, हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, हवा का शदीद तूफान अंदर आया। मैं गिरते गिरते बचा। एक ही वक्त में 3 रॉकेट मेरे हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरे। एक ऐसा धमाका हुआ जैसे आतिशफशां पहाड़ फट गया हो। इनमें से एक रॉकेट मेरे हेलीकॉप्टर की दुम को छू गया। इसके साथ ही मेरा आधा हेलीकॉप्टर उड़कर बिखर गया, बाकी दरख्तों के ऊपर गिरा। इस आधे हिस्से में मैं भी दरख्तों के ऊपर गिरा। अभी मेरी जिंदगी बची हुई थी। पहली बात तो ये हुई कि हेलीकॉप्टर के धमाके के साथ ही हेलीकॉप्टर फटा नहीं। दूसरी बात ये हुई कि मैं हेलीकॉप्टर की सीट से उछलकर बाहर निकला और एक ऐसे दरख्त पर जा गिरा जिस पर जंगली बेल ने जाल फैला रखा था। मैं जंगली बेल के जाल को और दरख्तों की शाखों को तोड़ता एक शाख पर झूलने लगा। खुदा ने मुझे बचा लिया। ये अल्लाह ताला का दूसरा मुआजिज़ा था। सबसे पहले मैंने अपने बाजुओं और घुटनों को हाथ लगाकर देखा कि मेरी हड्डियां सलामत हैं। मेरी सारी हड्डियां अपनी अपनी जगह अटेंशन थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब मैंने रान के साथ बंधे नक्शे पर हाथ रखा, वो अपनी जगह मौजूद था। मैंने शाख से जमीन पर छलांग लगाई। दुश्मन करीब ही किसी जगह उतर गया होगा। अब वो मेरी तलाश में इस तरफ आएंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि हेलीकॉप्टर को आग नहीं लगी। मैं जख्मी हूँ या मुर्दा बड़ा हूँगा और नक्शा मेरे पास महफूज होगा। इनके आने से पहले पहले मुझे वहां से फरार होना था। मैंने एक तरफ जंगल में भागना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले खत में लिखूंगा। आपका भाई इमरान, हॉलीवुड, अमेरिका। डियर सिस्टर, सलाम आदाब। पहले खत में भी आप ऊपर हॉलीवुड का नाम पढ़कर हैरान हुई होंगी। हम एकदम फ्लोरिडा से अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के खूबसूरत और सारी दुनिया के फिल्मी सितारों के मरकज हॉलीवुड कैसे पहुंचे। मैं इसकी तफसील इसलिए नहीं बताऊंगा कि आगे चलकर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम फ्लोरिडा से हॉलीवुड कैसे पहुंचे। अभी तो आपको ये बताना है कि हम क्यूबा के शहर हवाना से अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा कैसे पहुंचे। मैं हेलीकॉप्टर के मलबे को वहीं छोड़कर हवाना शहर के अजनबी जंगल में नामालूम मंजिल की तरफ भाग रहा था। दुश्मन मेरे पीछे था। इन लोगों की जान मुझ में थी, बल्कि इस खुफिया नक्शे में थी जो मैं वहां से लेकर फरार हो रहा था। अभी तक मुझे पीछे किसी फायर की आवाज ना आई, जिसका मतलब था मैं इन्हें नजर नहीं आया। वैसे मुझे यकीन था वो जंगल में इस मुकाम पर उतर चुके होंगे जहां मेरा हेलीकॉप्टर गिरा था। भागते भागते मैं थक गया। सुबह का मैंने सिर्फ नाश्ता ही किया था, पानी तक ना पिया था। मुझे शदीद प्यास लग रही थी। हलक खुश्क होने लगा। जंगल के दरख्त आपस में ऊपर जाकर इस तरह घुल मिल गए कि दिन की रोशनी बड़ी मुश्किल से नीचे आती। पानी वहां नजर न आता था। ये जंगल ऐसा था कि लगता था दुनिया में पहला आदमी हूँ जो इस जंगल में दाखिल हुआ। जमीन से निकलकर बेलें दरख्तों पर और दरख्तों से उतरकर बेलें जमीन पर फैली थी। दरख्तों के तने इतने इतने मोटे थे कि 2 हाथी एक साथ इसमें चुप सकते। कभी कभी दरख्तों पर कोई परिंदा बोल जाता। मैं भागना छोड़कर अब तेज तेज चल रहा था। मेरे सामने कोई मंजिल तो न थी, बस जिधर को मेरा मुंह था इधर को मैं चल रहा था। एक जगह मुझे पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज आई। मैं रुक गया और आवाज की तरफ बढ़ा। ये पानी एक छोटी सी चट्टान के अंदर से निकलकर नीचे छोटे से तालाब में गिरता था। मैं झाड़ियों को पकड़ता तालाब किनारे आया। तालाब पर झुककर पानी पीने लगा। पानी खा रहा था मगर फिर भी सब्र शुक्र करके पी लिया। पानी पीकर जान में जान आई। मैंने तालाब में हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर आराम करने बैठा। मेरे ऊपर दरख्त पर एक जर्द रंग का बड़ा तोता बार बार बोल रहा था। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, कहो यार क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। वो मुझसे कह रहा था कि दुश्मन सर पर आ रहा है, भाग जाओ। मगर मैं परिंदों की बोली नहीं समझ सकता था। बस तोते की बोली सुनकर यूं ही मुस्कुराता रहा। मैंने सोचा नक्शा निकाल कर तालाब में डाल दूं। फिर ख्याल आया वो लोग मेरा पीछा करते आ रहे हैं, वो इसे तालाब से निकाल लेंगे क्योंकि नक्शे के कागज पर मोम चढ़ी है और वो भीगने से खराब ना होगा। मैं भी सोच रहा था कि जंगल में राइफल के फायर की आवाज गूंजी। वो लोग मेरी तलाश में आ गए थे। मैंने सोचा यहाँ से भागकर कहाँ जाऊँ, खुद जाने ये जंगल कहीं खत्म होगा भी या नहीं, और अगर खत्म होगा तो कहाँ जाके खत्म होगा। फिर क्यों ना यहीं किसी जगह छुप जाऊं। मैंने दरख्तों में देखा, बड़े घने दरख्त थे, इनमें मैं छुप सकता था। मगर दरख्तों पर सांप बिच्छू का डर था। जिस पथरीली चट्टान में से पानी गिर रहा था इसके पीछे में आया। यहाँ एक छोटी ढलान थी। मैं ढलान से नीचे उतरा। एक खाई आई जिसमें पानी नहीं था मगर कीचड़ ही कीचड़ था। शायद रात की बारिश की वजह से हो गया था। मैं दीवार के साथ लगकर चलने लगा। एक बार फिर जंगल फायर के धमाके से गूंज उठा। दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। मैं भागने लगा। खाई आगे जाकर ऊपर चढ़ गई। मैं खाई से बाहर आया तो सामने कुछ फासले पर एक झोपड़ा था। मैं करीब गया। झोपड़े के पीछे एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। मुझे देखकर इसने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी, पसीना पोंछ कर बोला, तुम कौन हो। मैंने कहा, मेरे पीछे डाकू लगे हैं, मुझे छुपा लो। बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया, इधर छुप जाओ घास के अंदर। झोपड़ी से चंद कदम के फासले पर एक घास का बड़ा ढेर था। मैं इसके अंदर घुस गया। सबसे पहले मेरी नाक में तिनके चले गए जिनसे मुझे छींक आई। बूढ़े ने दूर से आवाज दी, अगर इस तरह छींके मारते रहे तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैंने मुंह के आगे से घास साफ करके इतनी जगह बनाई ताकि ताजा हवा अंदर आए।
घास में गर्मी बहुत थी लेकिन बाहर मौत थी। राइफल चलने की 2 और धमाके हुए। ये आवाज करीब से आती थी। थोड़ी देर के बाद आदमियों की बातें करने की आवाज आई। कुछ दूर लोग झोपड़ी के पास आकर रुके। उन्होंने बूढ़े से मेरे बारे में पूछा। बूढ़े ने कहा, कोई लड़का नहीं आया, ये तो जंगल बयाबान है, यहाँ कौन आता है भाई? वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है बाबा, कत्ल करके भागा है, पुलिस को इसकी तलाश है। बूढ़े ने कहा, यहाँ तो नहीं आया, उधर ना चला गया हो। वो आदमी ना उम्मीद होकर एक दूसरे से तेज तेज बातें करते वहां से चले गए। हर तरफ खामोशी छा गई। बूढ़े को यकीन था कि वो लोग जंगल से निकलकर पहाड़ियों में जा चुके होंगे। तो इसने मुझे घास से बाहर निकलने को कहा। मैं कपड़े झाड़ता बाहर आया। इसने मुझसे पूछा, मैंने किसको कत्ल किया है, मैं वहां से क्यों भागा हूँ? मैंने कहा, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बूढ़े ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? मैंने असल बात छुपाई। इन लोगों ने शहर के बैंक में डाका डाला था, मैंने इन्हें डाका डालते देख लिया। अब इन्हें डर है कि मैं पुलिस को इनके बारे में बता दूंगा, इसलिए ये मुझे कत्ल करके अपने खिलाफ दी जाने वाली गवाही को खत्म करना चाहते हैं। मैं भला किसी को क्यों कत्ल करूंगा? बूढ़े को मेरी बात का यकीन हो गया। इसने मुझे खाने को बकरी का मक्खन और खुश्क रोटी दी। फिर पूछा कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ भी वही कहानी दोहराई जो मैंने अपने मोटे डैडी को सुनाई थी कि मेरा बाप क्यूबा का रहने वाला था, माँ मैक्सिको की थी, मेरी पैदाइश अमेरिका में हुई। अब अरसे बाद रोजगार की तलाश में यहाँ आया था कि बैंक में डाका पड़ा और डाकू मेरे पीछे लगे। बूढ़ा कहने लगा, अब तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हारी मर्जी हो तो यहाँ मेरे पास रह जाओ, लकड़ियाँ काट कर शहर बेच आना। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, लेकिन मैं बहुत जल्द शहर जाना चाहता हूँ। मेरा एक भाई शहर में रहता है, मैं इससे जाकर मिलूंगा, फिर हम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर रोजी रोटी कमाएंगे। हम बातें करते थे कि बूढ़े ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। इसकी आंखें चारों तरफ घूम गईं। फिर वो आहिस्ता से बोला, जल्दी से घास में छुपो, कोई इधर आ रहा है, जल्दी करो। मैं भागकर घास के ढेर में छुप गया। अब मैंने घास के अंदर एक छोटा सुराख बनाया जिससे मुझे बाहर का मंजर नजर आता था। बूढ़े की छड़ी हिस्स ने ऐन वक्त पर इसे खबरदार किया। 2 आदमी जंगल की तरफ से निकलकर झोपड़ी के पास आकर रुके। मैंने इन दोनों को पहचाना। इनमें से एक बड़ा जासूस और एक उसका साथी था। यही वो लोग थे जिन्होंने फैक्ट्री की तलाशी ली। मेरा दिल धड़कने लगा, कमबख्त कहीं घास के ढेर की तलाशी न ले लें, क्योंकि इनको तलाशी लेने की बहुत आदत होती है। उन्होंने बूढ़े से मेरे बारे में सवाल किए। बूढ़े ने वही कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं आया। इस पर बड़े जासूस ने बूढ़े को ठुड्डा मारकर गिराया और पिस्तौल इस पर तान ली। बकवास करते हो, बताओ लड़का कहाँ छुपा रखा है तुमने? मैं घबराया, कहीं बाबा मेरे बारे में न बताए, मगर बूढ़े ने तरस से कराते यही कहा कि इसने किसी लड़के को यहाँ आते नहीं देखा। बड़े जासूस ने घास के ढेर की तरफ निगाह उठाई तो मेरी तो जान ही निकल गई। जासूस ने अपने साथी से कहा, इस घास के ढेर की तलाशी लो। मैं सहम गया, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद मैं गिरफ्तार होने वाला था। फिर तलाशी के बाद मुझसे नक्शा बरामद होता। वो लोग बूढ़े को मेरे साथ ही गोली मार देते। छोटा जासूस घास के ढेर की तरफ बढ़ा। बड़े जासूस ने बूढ़े के ऊपर पिस्तौल तान रखा था। मैं सोच रहा था कि उठकर एक तरफ भाग जाऊं कि अचानक क्या देखता हूँ, एक तरफ से सुर्ख सांप रेंगता हुआ चला आ रहा है। सांप ने अपना फन अभी नहीं उठाया था। वो रेंगता बड़े जासूस के पास आया। एकदम इसने अपना फन उठाकर लाल लाल जुबान निकाली, एक फनकार मारी, इससे पहले कि जासूस इस पर फायर कर सके। इससे जासूस को डस लिया। जासूस ने गोली चलाई। धमाके की आवाज पर वो जासूस मेरे करीब आया। वो पीछे मुड़ा। क्या हुआ बॉस? इसने चीख कर कहा, सांप सांप। दूसरा जासूस भी सांप पर फायरिंग करने लगा, मगर सांप गायब हो गया। बड़े जासूस पर जहर असर करने लगा। वो बैठ गया, फिर लेट गया। दूसरे जासूस ने इसे उठाना चाहा, मगर सांप का जहर इतना तेज था कि इसने चंद सेकंड के अंदर अंदर बड़े जासूस का काम तमाम किया। दूसरा जासूस अपने बॉस की लाश को वहीं छोड़कर मेरी तरफ आया। घास के अंदर से मुझे ढूंढ निकाले। कमबख्त, अभी तक वो मुझे ना भूला था। एक बार फिर मेरे सामने मौत खड़ी थी। जासूस ने घास को पांव मारकर इधर उधर बिखेरा। घास हटी तो मैं नीचे से निकला। जासूस ने खुशी से चीख मारी, सुअर, आखिर तुम मिल गए। मैं भागने लगा कि इससे पिस्तौल मेरी गर्दन पर रखा। बताओ खुफिया नक्शा कहाँ है? वो तो मैंने जला दिया। बकवास करते हो, मैं तुम्हें गोली मारकर हलाक कर दूंगा। मुझे बताओ नक्शा कहाँ है? वो तेजी से मेरी तलाशी लेने लगा। पीछे से एक गोली चली। जासूस को एक झटका लगा। वो घास पर गिर पड़ा और फिर न उठ सका। मैंने पलट कर देखा। बूढ़े ने बड़े जासूस का पिस्तौल हाथ पे थाम लिया। बेटा, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। इसने कहा, ये किस नक्शे की बात करते थे बेटा? ऐसा लगता है तुम असल बात छुपाते हो। मैंने सोचा बूढ़ा नेक दिल है। मैंने इसको तमाम बात बता दी। मैंने अपनी तमाम दास्तान इसे सुनाई और रान के गिर लिपटा खूनी नक्शा निकाल के इसके आगे रखा। शुरू से आखिर तक तमाम कहानी बयान की। वो कानों को हाथ लगाने लगा। ये लोग बेचारे बेगुनाह हबशी मुसलमानों पर किस कदर घिनौना जुल्म करने वाले थे। तुमने एक नेक काम किया है। मेरी आंखों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। शायद ये तुम्हारी नेकी थी जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची और सांप तुम्हारी मदद को आ गया, नहीं तो आज हम दोनों खत्म हो जाते। मैंने बूढ़े से कहा, इसके पास माचिस होगी? क्योंकि मैं असल फसाद की जड़ वो नक्शा जला देना चाहता था। वो झोपड़ी में जाकर माचिस ले आया। मैंने नक्शे के सारे टुकड़ों को एक जगह जोड़कर रखा। इनके ऊपर खुश्क घास रखी और माचिस से आग लगा दी।
दोनों जासूसों की लाशें इधर उधर पड़ी थी। नक्शे के मोमी कागज ने बहुत जल्दी आग पकड़ी और धड़ धड़ जलने लगा। अभी नक्शा आधा जला था कि हम पर जंगल की तरफ से गोलियां बरसने लगी। वो लोग मेरी तलाश में आ गए, शायद वो वापस आए थे। उन्होंने दूर से मुझे देख लिया। बूढ़े ने कहा, पिस्तौल लेकर घास के पीछे छुप जाओ। मैंने दूसरे जासूस का रिवॉल्वर उठाया, घास के ढेर के पीछे हो गया। बूढ़ा अभी तक दरख्त की ओट पे था। हमने भी गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। बूढ़ा दरख्त के पीछे से हट कर खिसकता हुआ मेरे पास आया। हमारी नजर में चलता हुआ नक्शा था। नक्शा पूरी तरह जलकर राख हो गया। बूढ़े ने इस राख पर 2-3 गोलियां चलाई। राख हवा में उड़ी। मैंने कहा, बाबा गोलियां जाया ना करो। इस पर बूढ़े ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोला, मोमी कागज जल भी जाए तो इसकी लकीरें इसी तरह बाकी रहती हैं और मशीन पर इसकी तस्वीर ली जा सकती है। मैंने गोलियां मारकर इसकी राख उड़ा दी। अब नक्शा हमेशा के लिए हवा में उड़ गया। एक गोली की आवाज के साथ ही एक गोली बाबा के सर के ऊपर से होकर दरख्त के तने में लगी। दरख्त की छाल उड़कर हम पर पड़ी। यहाँ से निकल चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। हम गोलियां चलाते पीछे हटे। हमने 3 आदमियों को सामने जंगल से निकलकर भागकर झोंपड़ी की तरफ आते देखा। वो फायरिंग भी कर रहे थे। गोलियां हमारे ऊपर से होकर सनसनाती गुजर रही थी। बूढ़ा मुझे लेकर दरख्तों और झाड़ियों से होता एक टीले के पास आया। यहाँ एक जगह दरख्त की जड़ें बाहर को निकली थी और सांपों की तरह टीले के आगे एक जगह लटक रही थी। मेरे साथ आओ, डरना नहीं। मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। बूढ़ा दरख्तों की जड़ों के अंदर चला गया। मालूम हुआ कि वहाँ एक गार का मुंह बना था। मैं भी इसके साथ ही गार में दाखिल हो गया। बूढ़ा जंगल के तमाम खुफिया रास्तों को जानता था। गार में मकड़ियों के जाले लगे थे जो हमारे सर और मुंह से लिपट गए। बूढ़ा बोला, घबराना मत, यहाँ एक अरसे से कोई नहीं आया। आज से 20 बरस पहले यहाँ से कोयला निकाला जाता था। गार में अंधेरा था। जगह जगह लकड़ी की गिल्लियां दीवारों के साथ लगी हुई थीं। लकड़ी की गिल्लियां जमीन पर भी पड़ी थी जिनसे हमारे पांव बार बार टकराते। गार कई जगहों से घूम घाम कर पहाड़ की दूसरी जानिब निकली। दिन की रोशनी में हम आए तो हमने एक दूसरे को देखा। हम हंस पड़े क्योंकि हमारे चेहरे मकड़ी के जालों में अटे थे। हमने सर और मुंह से जाले साफ किए। बूढ़े ने एक तरफ इशारा करके बताया, यहाँ दरख्तों के पीछे एक कच्ची सड़क शहर जाती है। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ कर आ जाऊंगा। मैंने कहा, बाबा वो लोग आपको जिंदा न छोड़ेंगे, आप मेरे साथ शहर चलें। बूढ़ा हंस पड़ा, बेटा वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। मैं इस जंगल का रहने वाला हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं इस जंगल में ऐसी जगह चला जाऊंगा जहाँ वो मुझे सारी जिंदगी तलाश भी करते रहें तो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। हम पहाड़ी से उतरकर दरख्तों के एक छोटे से जंगल में आए। यहाँ कहीं कहीं खेत थे। एक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। हमने रिवॉल्वर छुपा लिए। मेरे रिवॉल्वर में 2 गोलियां थी। दरख्तों से बाहर आए तो एक कच्ची सड़क मगरिब की तरफ जा रही थी। बूढ़ा, यहाँ आकर रुका। ये सड़क तुम्हें शहर को जाने वाली बड़ी सड़क पर पहुंचाएगी। वहां से तुम्हें कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर इसे दुश्मनों से होशियार रहने की ताकीद की। बूढ़े ने हंसकर कहा, वो मेरी हवा को भी नहीं छू सकते बेटा। मैं इस जंगल का बूढ़ा टार्जन हूँ। ये कहकर कहा मार के वो हंस पड़ा। मैं हंसने लगा। इसने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा, तुमने लाखों इंसानों को मौत के ज्वालामुखी में गिरने से बचाया। खुदा तुम्हें खुश रखे। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने रिवॉल्वर इसे देकर कहा, बाबा अब इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसे तुम अपने पास रखो। इसने रिवॉल्वर मुझसे लिया। हाथ मिलाकर दरख्तों में चलता आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजरों से ओझल हो गया। ये शरीफ बूढ़ा मुझे हमेशा याद रहेगा। इसके जाते ही मैं सड़क पर शहर की तरफ चलने लगा। ये छोटी सी कच्ची सड़क थी जिसके किनारे पत्थर बिखरे थे। कहीं कहीं नारियल और खजूर के दरख्त थे। रास्ते में केलों का बाग आया। यहाँ मैंने एक जगह पानी पिया। भूख बहुत लग रही थी। एक आदमी केले के गुच्छे काट काट कर ट्रॉली में रख रहा था। इसने मेरी तरफ 3-4 केले उछाल दिए और कहा, पर खुदा बड़े मीठे हैं, खाओ, ऐश करो। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। केले खाए, बहुत मीठे और खुशबूदार थे। मैंने शहर वाली बड़ी सड़क का पूछा। इसने कहा, थोड़ी दूर आगे रह गई। फिर मैं चलने लगा। केले खाकर कुछ तसल्ली थी। अब मुझे अपने दुश्मनों को खौफ न था। मैंने नक्शा चलाकर राख कर दिया। अब अगर वो मुझे पकड़ भी लेते तो इन्हें मुझसे कुछ भी हासिल न होता। शहर की खूबसूरत इमारतें और कोठियां शुरू हो गईं। सड़क पर दूर दौड़ती 2 मंजिला बसें नजर आईं तो मेरी जान में जान आई। लोग साइकिलों और स्कूटरों पर गुजर रहे थे। मैं बड़ी सड़क पर आकर एक जगह खड़ा हुआ। मेरा हुलिया नौकरों वाला बल्कि जमादारों जैसे था। मेरे पास एक टेडी पैसा न था। मैंने वही पुराना तरीका इस्तेमाल किया। खड़े होकर शहर को जाती कारों और ट्रकों और वैगनों को हाथ देने लगा ताकि मुझे शहर तक लिफ्ट मिले। आखिर एक वैगन रुकी। इसे एक खूबसूरत लड़की चला रही थी। ये काले रंग की हबशी लड़की थी। जैकेट और पतलून पहने थी। सर पर सफेद रंग की टोपी थी। इसका नाक बड़ा चौड़ा था। इसने हाथ का इशारा करके मुझे वैगन में आने को कहा। मैं उछलकर अगली सीट पर बैठा। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। बोली, कहाँ जाओगे? सर्कस ग्राउंड। मैंने कहा, तुम जंगल में सर्कस के लिए हाथी पकड़ने गए थे? और वो जोर से हंस पड़ी। वैगन स्टार्ट करके इसे पूरी तेज रफ्तारी पर छोड़ दिया। ये सड़क बहुत चौड़ी थी और ट्रैफिक जोर से शोर मचाती जा रही थी। 15 मिनट के बाद हम क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल हुए। यहाँ से मुझे सर्कस ग्राउंड का रास्ता बिल्कुल ना आता था। वो मोड़ घूमकर एक सड़क पर आई तो मुझे सामने सर्कस के शामियाने नजर आए। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। अब मेरे हाथ से मिलने वाला था। जब मैं इसे अपना कारनामा सुनाऊंगा तो बहुत खुश होगा। थोड़ी देर बाद वैगन जूम करके सर्कस के गेट पर रुकी। हबशी लड़की ने कंधे उठाकर मुस्कुरा कर कहा, ओके बड़ी बॉय, थैंक्स। मैंने इसे थैंक यू कहा तो वो बोली, नो प्रॉब्लम।
वो वैगन घुमा कर चली गई। मैं गेट से गुजरकर सीधा खैमे की तरफ आया। रेहान खैमे में न था। अमरीकी ड्राइवर हमफरी ने मुझे सुलिया में देखा तो चिल्लाया, अरे तुम कहाँ थे? हम तो समझे तुम्हें शेर खा गया। मैंने कहा, मैं जंगल में रास्ता भूल गया था। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मैंने रेहान का पूछा तो वो बोला, अभी अभी यहाँ था, आ जाएगा, चलो तुम अपना हुलिया ठीक करो, जंगली गोरीले लगते हो। मैंने गुस्से किया, नए कपड़े पहने, खाना खाया, पर रेहान ना आया। मैंने गेट के चौकीदार से पूछा, वो बोला, 2 आदमी इसे लेकर बाहर गए थे। मेरा माथा ठनका। कैसे थे वो आदमी? पर स्टार लगते थे। जब वो मेरे करीब से गुजरे तो तुम्हारे बारे में रेहान से पूछ रहे थे। मुझे पसीना आ गया। कमबख्त वो लोग यहाँ पहुंच गए और रेहान को साथ ले गए। मैंने चौकीदार से पूछा, वो किस तरफ को गए थे? इसने बताया, एक जीप में रेहान को बैठाकर शहर ले गए। मैंने फौरन ड्राइवर हमफरी को बताया, 2 आदमी रेहान को अगवा करके ले गए हैं। वो कह कहा मारकर बोला, क्यों? वो कोई करोड़पति है जिसे अगवा करके ले जाएंगे? इस मुल्क में तो सिर्फ करोड़पति लोगों को अगवा किया जाता है। मैंने इसे असल बात न बताई, सिर्फ इतना कहा, एक रोज हम कॉफी हाउस में थे, एक आदमी से हमारा किसी बात पर झगड़ा हुआ, हम वहां से आ गए, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे। अब वो रेहान से बदला लेने के लिए इसे उठाकर ले गए हैं। मेरी मदद करो, नहीं तो खुदा जाने वो रेहान को जिंदा छोड़े या नहीं। हमफरी संजीदा हो गया, ये बात तो है, आओ मेरे साथ। इसने सर्कस के गैराज से गाड़ी निकाली, मुझे बिठाया। सर्कस से बाहर निकलकर शहर की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। मैंने पूछा, हम कहाँ जाते हैं? कॉफी हाउस की तरफ, जहाँ तुम्हारा झगड़ा हुआ। हमारा झगड़ा तो कहीं हुआ ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं, हो सकता है वो लोग कॉफी हाउस में हो। रेहान ने इन्हें ये कहा हो कि इमरान कॉफी हाउस में आएगा। इस तरीके से रेहान वहां से फरार होने के मौके की तलाश में होगा। हमारी गाड़ी कॉफी हाउस के सामने जाकर रुक गई। हम कॉफी हाउस में दाखिल हुए। वहां कितने ही ग्राहक बैठे दोपहर का खाना खाते थे, लेकिन इनमें रेहान न था। अब मुझे बड़ी फिक्र हुई, खुदा खैर करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मैंने इस वक्त फैसला किया कि हमफरी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाऊं, पुलिस को फैक्ट्री और नक्शे के बारे में बताकर फैक्ट्री पर छापा मारने की कोशिश करूं। मैं और हमफरी कॉफी हाउस से बाहर निकले। मैं इससे पुलिस स्टेशन चलने को कहने वाला था कि एक कार तेजी से गुजरी। मैंने इसमें रेहान को बैठे देखा। इसके मुंह में रुमाल ठूसा हुआ था। दाएं बाएं खूनी फैक्ट्री के 2 आदमी थे। मैंने उन्हें पहचान लिया। मैंने हमफरी से चीख कर कहा, हमफरी कार का पीछा करो, वो रेहान को अगवा करके ले जा रहे हैं। ओके बॉस। हमफरी खुश मिजाज मगर बहादुर अमरीकी ड्राइवर था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और अगली कार के पीछे डाल दी। बाजारों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, मगर हमफरी होशियार ड्राइवर था। वो शू शू करके ट्रकों और कारों के इधर उधर से गाड़ी निकाल कर भगाया जा रहा था। अगली कार बड़ी सड़क पर आकर दाएं जानिब घूम गई। हम भी इसके पीछे मुड़े। अचानक अगली कार से गोली चली, हमारी गाड़ी की छत से आकर टकराई। हमफरी चिल्लाया, गधे के बच्चे फायरिंग कर रहे हैं। हमफरी के पास पिस्तौल न था। इसने गाड़ी को दाएं बाएं लहराना शुरू किया ताकि गोलियों से बच सके। अगली कार एक खंबे से टकराकर फुटपाथ पर चढ़ गई और एक भयानक चीख के साथ एक तरफ मुड़कर वापस सड़क पर दौड़ने लगी। हम भी इसके पीछे गाड़ी को भगा रहे थे। कार शहर से बाहर बड़ी सड़क पर आई। इतना शोर शराबा देखकर कहीं से एक पुलिस की कार हमारे पीछे शोर मचाती आने लगी। अब अगली कार वाले खबरदार थे, क्योंकि पुलिस इनके पीछे थी। अब सड़क ऐसी जगह पर आ गई जहां से रेलगाड़ी की लाइन भी साथ साथ गुजरती। कुछ फासले पर एक रेलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही थी। अगली कार रेलगाड़ी के करीब जाकर सड़क पर रुकी। इसके दरवाजे खुले। 2 आदमी पिस्तौलें चलाते कार से निकलकर रेलगाड़ी की तरफ भागे। रेलगाड़ी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। उन्होंने ट्रेन के साथ साथ भागना शुरू किया। उछलकर एक डब्बे में सवार हुए। हमफरी अपनी गाड़ी अगली कार के पास ले जाकर खड़ी कर चुका था। पुलिस वाले भी वहीं आ गए। हमने रेहान को बाहर निकाला, जिसको रस्सियों से जकड़ा हुआ था। इसके मुंह में रुमाल ठुसा था। हमने इसे खोला, मुंह से रुमाल निकाला। रेहान ने एक लंबा सांस लेकर कहा, भाजी हुण आयो, इन्होंने फड़ भी लगो। पुलिस के सिपाही इन लोगों को पकड़ने के लिए भागे, मगर वो रेलगाड़ी में सवार हो गए थे। ट्रेन छुक छुक करती दूर चली गई। पुलिस ने इनकी गाड़ी अपने कब्जे में की। हमारा बयान लिखवाया। रेहान ने यही बयान दिया कि वो कुछ नहीं जानता ये लोग कौन थे, इसे कहाँ ले जा रहे थे। मैं सर्कस ग्राउंड के बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर कार में डाल दिया, मेरा मुंह बंद किया और मुझे लेकर चल पड़े। अगर रास्ते में इत्तेफाक से मेरा दोस्त इमरान न मिलता तो खुदा जाने मुझे कहाँ ले जाते। पुलिस रिपोर्ट लिखकर चली गई और हम भी हमफरी के साथ गाड़ी में बैठकर वापस सर्कस में आए। अपने खैमे में जाकर मैंने रेहान को अपना कारनामा सुनाया तो वो अश अश कर उठा। तुमने तो कमाल कर दिया इमरान, मैं समझता हूँ तुमने बड़ी जबरदस्त इंसानी खिदमत की है, खासकर अमेरिका के हबशी मुसलमानों की। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर अब क्या करें, वो लोग तो हमारे पीछे हैं। मेरा तो मशवरा है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से हम अकेले किस तरफ जाएंगे? इस सिलसिले में मेरा ख्याल है ड्राइवर हमफरी हमारी मदद करेगा, इससे बात करते हैं। हमने यही फैसला किया कि हमफरी से बात करें। शाम को हमने सर्कस का शो शुरू होने से पहले हमफरी से कहा कि हमारे पीछे यहाँ के दुश्मन लग गए हैं, हम चाहते हैं यहाँ से निकलकर अमेरिका चले जाएं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हमफरी ने क्या जवाब दिया ये मैं आपको अगले खत पे लिखूंगा। आपका भाई इमरान, हॉलीवुड अमेरिका। प्यारी बहन अस्सलाम वालेकुम। हॉलीवुड एक हसीन जगह है, रोशनियाँ ही रोशनियाँ, फिल्मों के स्टूडियो, पार्टियाँ, रौनकें ही रौनकें। इनके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बाद में लिखूंगा। पहले तो मैं ये बताऊं कि इस सर्कस के ड्राइवर हमफरी ने क्या जवाब दिया।
वो बोला, अगर तुम समझते हो तुम्हारी जिंदगी यहाँ खतरे में है तो फिर तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेहान ने कहा, यही तो हम आपसे पूछने आए हैं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमफरी सोच में पड़ गया, फिर चुटकी बजाकर बोला, कल सुबह बात करूंगा, फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। रात को सर्कस का शो खत्म हुआ तो हम अपने खेमे में बिस्तर पर लेटे देर तक बातें करते रहे कि हमफरी हमारी क्या मदद करेगा, वो किस तरह हमें वहां से निकालेगा। खूनी गिरोह के आदमी हमारे पीछे लगे हैं, इन्हें हमारे ठिकाने का पता लग गया, वो हमें किसी भी वक्त बेखबरी में कत्ल कर सकते हैं क्योंकि हम इन्हें बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुके हैं। इनके सारे किए कराए पर हमने पानी फेर दिया। दूसरे रोज हमफरी दोपहर के वक्त से कुछ पहले हमारे खेमे में आया। वो कुर्सी पर बैठा जेब से पाइप निकालकर सुलगाकर बोला, मैं अभी अभी अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ। वो क्यूबा की एक बंदरगाह से स्मगलिंग का सामान लेकर खलीज मैक्सिको से गुजरकर मैक्सिको मुल्क की एक और बंदरगाह पापोस तक जाता है। मैंने इसे राजी किया है, वो तुम्हें अपने स्टीमर में छुपाकर खलीजे मैक्सिको से होकर मैक्सिको के मुल्क में पहुंचा देगा। यह सफर खतरनाक है क्योंकि इधर से क्यूबा के सिपाही और उधर से मैक्सिको की पुलिस के सिपाही लॉन्चों में गश्त करते हैं और स्मगलिंग करने वाले स्टीमर को रॉकेट मार के गर्क भी कर देते हैं, और कभी गर्क करने का मूड ना हो तो गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं जहां से फिर रिहाई नहीं मिलती। क्या तुम ये खतरा मोल लेने को तैयार हो? हमफरी को मालूम न था कि हम किस किस्म के भयानक खतरों से गुजरते रहे हैं। मैंने कहा, मिस्टर हमफरी, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, हमें ये खतरा मोल लेना है, हम इसके साथ जाने पर तैयार हैं। हमफरी ने पाइप झाड़कर कहा, तो फिर कल रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के स्टीमर तक ले जाऊंगा। रेहान ने कहा, वो कितनी रकम लेगा हमसे? हमारे पास तो बड़े थोड़े पैसे हैं। नेक दिल हमफरी ने बाजू हिलाकर कहा, भूल जाओ पैसों को, मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है, वो मेरा दोस्त है, वो तुम्हें ऐसे ही मैक्सिको पहुंचा देगा। कुछ डॉलर मैंने इसे दे दिए हैं, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर वो उठ खड़ा हुआ, यहाँ किसी से बात न करना, तुम लोग चले जाओगे तो मैं मशहूर कर दूंगा कि तुम लोग फरार हो गए, सर्कस वाले भूल जाएंगे। अच्छा अब मैं जाता हूँ, कल रात तैयार रहना, मैं 12 बजे तुम्हारे पास आऊंगा। हमफरी चला गया। हम देर तक इस नेक दिल ईसाई की इंसानी हमदर्दी के जज्बे की बातें करते रहे। वो एक ग्रेट आदमी था, हर वक्त हर इंसान की मदद और खिदमत पर तैयार रहता। वो हजरत ईसा की तालीमात पर पूरी तरह अमल करता, इसको किसी इंसान से कोई गर्ज न थी, वो सबके काम आने का मौका ढूंढता। दूसरे दिन हमने बेचैनी से गुजारा। हमफरी से हमारी मुलाकात सर्कस में शो के दौरान हुई। इसने कहा, रात 12 बजे तैयार रहना बड़ी बॉय। ओके बॉस, रेहान ने सलूट करके कहा। हमफरी मुस्कुराकर चला गया। शाम को हमने बाजार जाकर नए जैकेट, बूट और नई जीन्स वगैरह खरीदी। कुछ दूसरी छोटी छोटी चीजें खरीद कर अपनी किट में रख ली और अब रात का इंतजार करने लगे। हमने खाना सर्कस के तंबू के नीचे बैठकर खाया। हमफरी वहां न आया, शायद वो अपने स्मगलर दोस्त के पास हमारे सफर के बारे में आखिरी इंतजामात करने गया। सर्कस का शो रात को 11 बजे खत्म हुआ तो हमें हमफरी ड्राइवर कहीं नजर न आया। रेहान बोला, कहीं वो खुद स्मगलिंग में तो नहीं पकड़ा गया। लेकिन 11:30 बजे रात जब हम अपने खेमे में बेचैनी से उसके मुंतजर थे, वो आ गया। इसने आते ही कहा, जल्दी से मेरे साथ निकलो। हम पहले तैयार बैठे थे, हमने अपने सफरी थैले कमर पर बांधे, हमफरी के साथ बाहर आए। वो हमें गेट की तरफ से नहीं ले गया बल्कि शेरों के पिंजरे के पीछे से होकर एक जगह तार की बाड़ को उठाकर हम बाहर निकले। वहां इसकी पुरानी गाड़ी खड़ी थी, इसने हमें गाड़ी में बिठाया। फुल स्पीड पर गाड़ी चलाता शहर से बाहर रवाना हुआ। रात गहरी थी, तारीख थी, शहर की रोशनियां पीछे रह गई थी। हम शहर से काफी दूर निकल आए। यहाँ एक वीरान इलाका आ गया। कहीं कहीं अंधेरे में पहाड़ियों के खाके नजर आते। गाड़ी भागी जा रही थी। हमफरी खामोशी से गाड़ी चला रहा था। फिर समंदर का किनारा आया। यहाँ हवा में पानी की नमी महसूस होने लगी। अंधेरे में समंदर की काली चादर दूर तक फैली हुई थी। गाड़ी हवा से बातें करती भागी जाती थी। हम पहाड़ियों और चट्टानों में आ गए। गाड़ी की स्पीड हल्की हुई। मैंने दूर समंदर में एक स्याह धब्बा देखा। हमफरी ने एक तरफ ले जाकर गाड़ी खड़ी की और हमें उतरने के लिए कहा। हमफरी ने जेब से टॉर्च निकाली, समंदर वाले स्याह धब्बे की तरफ इसका रुख करके 3 बार रोशन किया। इसके जवाब में स्याह धब्बे से 3 बार किसी ने टॉर्च रोशन की। हमफरी ने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा। अंधेरे में इसके सफेद दांत चमके। वो लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर में एक गोल रबड़ की कश्ती किनारे पर आई। इसमें एक स्याह जैकेट, स्याह पतलून वाला आदमी बैठा था। हमफरी ने इससे कोई बात ना की। फिर हम बारी बारी इससे हाथ मिलाकर कश्ती में बैठने के लिए तैयार हो गए। मेरे दोस्तों, खुदा हाफिज, जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर वो तेजी से गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करके चला गया। हम इसका मुंह तकते रहे। कश्ती वाले आदमी ने कहा, देर न करो, जल्दी से कश्ती में बैठो। हम रबड़ की गोल कश्ती में बैठे जिसके किनारे फूले हुए थे। कश्ती अंधेरे में समंदर के पानी में शड़प शड़प करती स्याह धब्बे की तरफ चल पड़ी। ये स्याह धब्बा एक स्टीमर था जो नाजायज तौर पर स्मगलिंग का माल क्यूबा लाता और वहां से मेक्सिको ले जाता। स्टीमर सिर्फ हमारा मुंतजर था। कश्ती स्टीमर के साथ जाकर लगी। ऊपर से खामोशी से एक रस्से की सीढ़ी लटका दी गई। इसकी मदद से हम स्टीमर पर चढ़े। एक काली नोकीली मूंछों और चौड़े शानों वाला सांवला नौजवान मुस्कुराकर हमसे हाथ मिलाने लगा। मुझे अंतोनियो कहते हैं, मैं इस स्टीमर का कप्तान हूँ और मालिक भी। हमफरी ने मुझे बताया था। फिक्र की बात नहीं, मैक्सिको पहुंचकर तुम्हें वहां से कैलिफोर्निया भिजवाने की कोशिश करूंगा। हम खुश हुए, इसका शुक्रिया अदा किया। इसने हमें नीचे केबिन में भिजवा दिया।
अभी हमने छोटे से केबिन में कदम रखा था कि स्टीमर का इंजन स्टार्ट हुआ और वो समंदर में चल पड़ा। रेहान ने कहा, ये तो मुझे कोई बकरी डाकू लगते हैं बड़ी। मुझे तो अंतोनियो अच्छा नौजवान लगता है यार, वैसे हमफरी बड़े काम का आदमी था, खुदा इसे खुश रखे। रेहान ने सफरी थैला बर्थ पर रखकर कहा, हाँ यार, हमफरी की याद हमारे दिल में हमेशा ताज़ा रहेगी। इस वक्त अगर वो हमारी मदद न करता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। केबिन का दरवाजा खुला, स्टीमर का मालिक कप्तान अंतोनियो मुस्कुराकर अंदर आया। हेलो दोस्तों, तुम पाकिस्तानी हो? हमफरी ने मुझे ये भी बताया। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाऊं या चाय? मैंने अंतोनियो का शुक्रिया अदा किया और कहा, शुक्रिया, हमें इस वक्त नींद आ रही है, हम अब सो जाएंगे। रेहान ने कहा, सर हम मेक्सिको किस वक्त पहुंचेंगे? अंतोनियो ने हंसकर कहा, अगर मौसम ठीक रहा और सिपाहियों के बादलों ने हमला न किया तो हम कल शाम के बाद पापोस की बंदरगाह से 50 मील दूर साहिल पर उतरेंगे। कप्तान शब्बा खैर कहकर चला गया। हम अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। रेहान बोला, यार अगर साहिली गार्ड के सिपाहियों या कस्टम के सिपाहियों ने हमला किया तो लगता है कल का नाश्ता समंदर की मछलियां हमारे सिपाहियों से करेंगी। खुदा ना करे ऐसा हो यार, कभी जबान से अच्छी बात निकाला करो। रेहान ने कहा, अच्छी बुरी बात क्या हुई बाजी? ये तो जो भा एंटोनियो कह गए हैं कि इस हमले का खतरा हर वक्त है। मैंने जमाई लेकर कहा, अच्छा यार अब सोने दो, जो होगा देखा जाएगा। रेहान ने जमाई ली और कहा, जो होगा वो मुझसे तो देखा ही ना जाएगा। थोड़ी देर बाद इसने खर्राटे लेना शुरू कर दिए। हालांकि वो सबसे ज्यादा परेशान था, मगर इसे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती थी। किसी वक्त तो बातें करते करते सो जाता। इसके खर्राटों से पहले तो मैं परेशान हुआ, फिर मुझे भी नींद आ गई। हो सकता है कि मैं भी खर्राटे लेने लगा था। सुबह मेरी आंख खुली तो स्टीमर के अंदर गोल शीशे के सुराख से रोशनी आ रही थी। रेहान अब तक सो रहा था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। एक आदमी नाश्ता लिए खड़ा था, चाय, मक्खन, पनीर, डबलूटी और माल्टे और केले। मैंने रेहान को जगाया। हमने हाथ मुंह धोकर खुदा के हुजूर नमाज पढ़ के सजदा किया, नाश्ता करने लगे। रेहान कहने लगा, ये तो अलिफ लैला के शहजादों का नाश्ता लगता है मुझे। नाश्ते के बाद हम स्टीमर के अर्शे पर आए। यहाँ सबसे पहले हमने आसमान के स्याह बादलों को देखा। हवा बंद थी। कप्तान अंतोनियो सीढ़ी के पीछे से निकलकर हमारे पास आया, मुस्कुराकर बोला, सुबह खैर दोस्तों, कहो नींद ठीक से आई? हमने अभी इसे सुबह बखैर कहा। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, हवा बंद है, कहीं तूफान न आ जाए। हमारा स्टीमर नपीतुली रफ्तार से खलीजे मेक्सिको के नीले पानियों में गुजर रहा था। हमने खास तौर पर एक बात महसूस की, स्टीमर के ऊपर का हिस्सा बड़ा शिकस्ता था। ऐसा लगता था जैसे किसी मछलियां पकड़ने वाले की बड़ी किश्ती हो। एक बादबान भी बांस के साथ ऊपर को चढ़ा दिया गया। दो स्मगलर माहिगीरों के लिबास में एक जगह बैठे जाल मुरम्मत करते थे। अंतोनियो ने करीब आकर कहा, हमफरी ने तुम्हें बताया होगा कि हमारा फेरा मौत का फेरा है, इसलिए हमें भेस बदल कर सफर करना है। हम ये जाहिर करते हैं कि खलीज में मछलियां पकड़ रहे हैं। वो कहकर मार कर हंस पड़ा, फिर बादबान को एक तरफ से बांधने की हिदायत देता दूसरी तरफ चला गया। रेहान ने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, ये तो बहरूपिया स्टीमर है भाई, अंदर स्मगलिंग का लाखों का माल भरा है, ऊपर से करीब माहिगीर की कश्ती लगती है। मैंने कहा, भाई हमें इससे क्या, हम तो बस किसी न किसी तरह मेक्सिको पहुंच जाएं तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे, हमें इनकी स्मगलिंग से क्या काम। रेहान ने तंज से कहा, जी हाँ, जब फौज के सिपाही आ गए तो इनके साथ हमें भी पकड़ लेंगे, फिर खुदा जाने किस जेल से कब निकलना नसीब हो। मैंने देखा स्टीमर के ऊपर अर्शे पर जो मल्ला थे, इनमें कुछ बेचैनी सी फैल रही थी। कोई ऊपर से नीचे जा रहा था, कोई नीचे से ऊपर आ रहा था। अंतोनियो ने ऊंची आवाज से कहा, खबरदार, सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। फिर वो भागकर हमारे पास आया। सुनो, अपने केबिन में जाकर लेट जाओ, जब तक मैं ना कहूँ बाहर ना निकलना। रेहान ने पूछा, खैर तो है अंतोनियो? वो मुस्कुराया, हमारे दुश्मन कस्टम वालों का स्टीमर आ गया है। मैं परेशान हो गया, लेकिन जल्दी से रेहान को साथ लेकर नीचे आ गया। केबिन का दरवाजा बंद करके हमने अंदर से चटखनी लगाई और छोटे गोल सुराख से बाहर देखा। दूर एक नीले रंग का स्टीमर बड़ी तेजी से समंदर की लहरों को चीरता हमारे स्टीमर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे स्टीमर के ऊपर लगी गन साफ नजर आती थी। रेहान कहने लगा, ये अल्लाह खैर, ये तो कमबख्त गोलाबारी करके स्टीमर को गर्क कर देंगे। ये क्यूबा की कोस्ट गार्ड और कस्टम का स्टीमर था, जिसके ऊपर 6-7 मशीन गनों वाले सिपाही चौकस थे। कस्टम्स का स्टीमर हमारे स्टीमर के करीब रुका। एक अफसर ने स्पीकर मुंह से लगाकर ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे पास जितना असलहा, रिवॉल्वर, मशीन गन है, हमारे हवाले कर दो। खबरदार, अगर गोली चलाई तो हम रॉकेट मारकर स्टीमर को गर्क कर देंगे। उधर से अंतोनियो ने ऊंची आवाज में कहा, सिनेरियो, हम गरीब माहिगीर हैं, समंदर में 2 रोज से मछलियां पकड़ रहे हैं, हमारे पास मशीन गन और रिवॉल्वर नहीं। अफसर ने चीख कर कहा, बकवास बंद करो, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। सिनेरियो, अंतोनियो ने कहा, कुछ सिपाही हमारे स्टीमर पर कूद गए, बाकी वहीं से अपने स्टीमर से मशीन गन तान कर खड़े रहे। फिर न जाने क्या हुआ, हमारे स्टीमर पर मशीन गन के फायर का एक ब्रस्ट हुआ। फायर की आवाज के साथ ही किसी अफसर की चीख बुलंद हुई। साथ ही कस्टम वालों ने फायरिंग शुरू करी। अंतोनियो ने गर्ज कर कहा, मोबोतो हैंड ग्रेनेड, और इसके साथ ही ऊपर तले 6-7 दस्तई बम कस्टम वालों के स्टीमर पर गिरा
कर इन्हें धमाकों से फाड़ दिया गया। स्टीमर के परख उड़ गए। वो 2 टुकड़े होकर देखते ही देखते समंदर में गर्क हो गया। ऐसा लगता था कि यहाँ कभी कोई स्टीमर न था। हर तरफ खामोशी थी। फिर ऊपर अर्शे से सिपाहियों की लाशें एक एक करके समंदर में गिरने लगी। फिर स्टीमर का इंजन स्टार्ट हुआ और फिर वो पहले से ज्यादा स्पीड के साथ समंदर में रवाना हुआ। रेहान ने सर हिलाकर कहा, उफ, बड़े खूनी स्मगलर हैं ये लोग। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे ये बहरी डाकू लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बड़ी बॉय, अगर कस्टम के सिपाहियों का दाव चल जाता तो हमारा स्टीमर इस वक्त समंदर के अंदर गर्क हो गया होता और इनके स्टीमर से लाशें समंदर में फेंकी जा रही होती। ये तो जिसने पहल की वो जीत गया। ये जंग तो इन समंदरों में होती ही रहती है। दरवाजा खुला। एंटोनियो रुमाल से गर्दन का पसीना पोंछ कर अंदर आया। सिनेरियो, खाना हमारे साथ खाओगे ना? रेहान ने कहा, सर आपने कमाल कर दिया। अंतोनियो कंधे उचकाकर बोला, ये चलता रहता है। मैंने पूछा, सर अब आगे तो कोई खतरा नहीं? अंतोनियो ने एक बार फिर कंधे उचकाए बोला, हो सकता है खतरा हो सकता है खतरा ना हो। अगर खतरा हुआ तो? इसने मुस्कुराकर अपनी गर्दन पर उंगली फेरकर मुंह से तेज आवाज निकाली और कहा, मजा चखा देंगे इन्हें भी, यही अशर करेंगे उनका। दोपहर के बाद हमारा स्टीमर खलीज मैक्सिको के दरमियान में पहुंच गया। हम क्यूबा की समुद्री हदूद को पार कर चुके थे। अब मैक्सिको की समुद्री हदूद की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारा स्टीमर छोटा था। लेकिन एंटोनियो एक तजर्बेकार और माहिर कप्तान था। इसने बादबानों को लपेट रखा था, जिसकी वजह से स्टीमर ज्यादा हिचकोले नहीं खा रहा था। फिर भी वो काफी डोल रहा था। अगर हमें इस किस्म के समंदरों में सफर करने की आदत न होती तो हमें चक्कर आते और बकौल रेहान की नानी याद आ जाती। समंदर पर शाम का अंधेरा फैलने लगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहीं लिखा है कि समंदर में शाम की रोशनी देर तक रहती है। फिर जब एक बार सूरज गुरूब हो जाए तो आसमान पर तारे बड़ी तेजी से निकल आते हैं। हमारा स्टीमर मैक्सिको की हुकूमत की समुद्री हदूद में दाखिल हो गया। कस्टम के गश्त करने वाले स्टीमर के रास्ते से हटते हुए जा रहे थे। रात हुई तो दूर से लाइट हाउस की रोशनी समंदर पर पड़ी। हमारा स्टीमर इस रोशनी से अपने आप को बचाकर जुनूब की तरफ निकल गया। 1 घंटे के सफर के बाद हम एक सुनसान साहिल के साथ जा लगे। ये मैक्सिको की साहिली बंदरगाह पापोस से कुछ मील जुनूब की जानिब एक बेआबाद साहिल था। स्टीमर किनारे से कुछ दूर समंदर में ही खड़ा हो गया। लंगर डाल दिया गया, जिसकी वजह से अब वो डोल नहीं रहा था। अंतोनियो ने स्टीमर के ऊपर अर्शे पर खड़े होकर साहिल की तरफ देखा। 3 बार टॉर्च की रोशनी की। थोड़ी देर के बाद साहिल की एक पहाड़ी के दामन से किसी ने टॉर्च को 3 बार जलाकर बुझाया। अंतोनियो ने मल्लाहों को हुक्म दिया, माल नीचे से निकाल कर ऊपर लाओ। फौरन स्मगलिंग का सामान बोरियों और लकड़ियों के खोखों में जो बंद था ऊपर लाकर रखा गया। 10 मिनट के बाद साहिल की तरफ एक बड़ी कश्ती आकर स्टीमर के साथ लगी। जल्दी जल्दी इसमें सामान भरा गया। इसके बाद अंतोनियो ने मुझे और रेहान को साथ लिया और कश्ती साहिल की तरफ चल पड़ी। रात के 12 बजे पापोस शहर की रोशनियां काफी दूर नजर आती थीं। ये जगह शहर से दूर थी। साहिल पर रेत में एक जगह झाड़ियों के पीछे वैगन खड़ी थी। जो ही हमारी कश्ती साहिल पर पहुंची, इससे 4 हट्टे कट्टे आदमी निकलकर हमारी तरफ लग गए। आन की आन में उन्होंने सारा सामान उठाया, वैगन में भरा, फिर खुद भी पीछे घुस गए। मैं, अंतोनियो और रेहान अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठ गए। कश्ती वाले स्टीमर की तरफ वापस चले गए। हमारी वैगन ने शहर का रुख किया। शहर के करीब पहुंचकर वैगन एक वीरान इमारत के गैराज में घुस गई। यहाँ सामान उतार कर इसे बंद कर दिया गया। अंतोनियो ने हमारे सामने टॉर्च की रोशनी में इन लोगों से डॉलर और भरा हुआ अटैची केस लिया और ड्राइवर से कहा, ये दोनों हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें सबातो के पास ले जाओ और कहो कि इन्हें जिस तरह भी हो कैलिफोर्निया भिजवा दे। इसके बाद अंतोनियो ने हमारी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, दोस्तों घबराओ नहीं, सबातो मेरा यार है, वो तुम्हें कैलिफोर्निया पहुंचा देगा। मेरा इतना कहना काफी है। अच्छा, खुदाफिज, बाय बाय। अंतोनियो वैगन को लेकर गैराज से निकला, एक तरफ हो गया। ड्राइवर हमें साथ लेकर इमारत की दूसरी तरफ आया। यहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत चमकीली कार खड़ी थी। इसने हमें कार में बिठाया। कार स्टार्ट करके पापोस शहर की तरफ चल पड़ा। शहर वहां से 3 मील दूर था। कहीं रोशनी थी, कहीं अंधेरा, कहीं लोग जाग रहे थे, कहीं बिल्डिंगों में बत्तियां गुल थीं। छोटा सा शहर था। ड्राइवर एक क्लब के आगे रुक गया। क्लब के दरवाजे पर एक पहरेदार बड़ा ही तिंको वाला हैट मुंह के आगे रख कर सो रहा था। ड्राइवर ने ठोकर मार कर इसे कहा, सिनोरियो जागो। पहरेदार हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। इसने ड्राइवर को पहचान कर सलाम किया, फिर मुंह से हैट दोबारा रखा और फिर सो गया। क्लब में एक औरत डांस कर रही थी। बड़ा तेज पॉप म्यूजिक बज रहा था। कई लोग बैठे शोर शराबा करते थे, कुछ नाच रहे थे। ड्राइवर हमें क्लब के खास कमरे में ले आए। यहाँ एक मोटी नाक और बारी मूंछों वाला सबातो मिला। ड्राइवर ने इसे अंतोनियो का पैगाम देके हमारा तारुफ करवाया, खुद सलाम करके चला गया। सबातो ने ताज के पत्ते मेज पर रखे, हमें गौर से देखा, फिर चमकीले दांत निकाल कर मुस्कुराया और बोला, सिनेरो कोई बात नहीं, एंटोनियो मेरा दोस्त है, एंटोनियो का दोस्त मेरा दोस्त। तुम कुछ खा पी लो, फिर आराम कर लो, कल देखा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसने किसी खुफिया घंटी का बटन मेज के नीचे से दबाया। एक पुलिसवाला लड़की आई। सबातो ने इसे कहा कि हमें लेकर जाए, खाना खिलाए और बेडरूम में पहुंचा दे। लड़की आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थी। इसने हमें पीछे पीछे आने का इशारा किया। रेहान ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, मुझे तो ये कोई सांप की फूफी नागिन आंटी लगती है।
اس نے ہمیں کمرے میں پہنچایا جہاں بڑے نرم نرم بستر والے پلنگ تھے. وہ چلی گئی. ہم نے ہاتھ منہ دھویا. اتنے میں ایک نوکر بنے ہوئے مرغ اور چاولوں سے بھرا ٹرے لے آیا. بڑے مزے سے ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا پھر سو گئے. ایسی نیند آئی جیسے برسوں کے بعد سونے کو ملا ہو. آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. ہم نے نیم گرم پانی والی شاور سے خوب صابن مل مل کر نہایا. دن کپڑے بدل کر تیار ہوئے. نوکر ناشتہ لایا. انڈے، کارن فلیکس، پنیر اور دلیا، چائے. ناشتے کا مزہ آیا. اس کے بعد اسی پراسرار آنکھوں والی آنٹی ناگن نے آ کر ٹوٹی پوٹی انگریزی میں کہا سباتو بلاتا ہے. ہم سباتو کے کمرے میں آئے. وہ بڑی سی شیشے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھتے ہوئے چائے کی پیالی میں چمچ چلا رہا تھا. ہماری طرف دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں صوفے پر بیٹھنے کو کہا. پھر فون پر کسی سے میکسیکو کی زبان میں باتیں شروع کی. فون بند کر کے اس نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا اوکے سینیریو سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ اجازت دیں. اس کے بعد کے حالات آپ کو اگلے خط میں لکھوں گا. آپ کا بھائی عمران، ہالی ووڈ، امریکہ. ڈیئر سسٹر، سلامت رہو. سباتو نے ہمیں بتایا کہ اس کا گہرا دوست اور قابل اعتبار ساتھی زپاٹا ہالی ووڈ میں فلموں میں فائٹنگ کا کام کرتا ہے. جہاں ہیرو نے چٹان کے اوپر سے گرنا ہوتا ہے تو ہیرو کی جگہ وہ گرتا ہے. ہیرو نے کسی فلم میں ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانی ہوتی ہے تو ہیرو کی جگہ وہ چھلانگ لگاتا ہے. بڑا ہی مزیدار آدمی ہے. وہ فلموں میں کافی دولت کماتا ہے. اس کا چھوٹا سا اپنا ذاتی ہوائی جہاز ہے جس میں 6-7 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. وہ آج رات اپنے جہاز میں ہالی ووڈ واپس جا رہا ہے. تم لوگ اس کے ساتھ چلے جاؤ. اپنے اپنے پاسپورٹ مجھے دے دو. میں کیلیفورنیا کی اسٹیٹ سے ویزے لگوا دوں گا. ہم بڑے خوش ہوئے. ہم نے اسے پاسپورٹ دیے. شام کی چائے پر ہمیں پاسپورٹ واپس مل گئے. ان پر ویزے لگے تھے. خدا جانے یہ ویزے جعلی تھے یا اصلی. ہم نے پاسپورٹ جیب میں رکھے. رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم کلب میں آ کر بیٹھے. رات کے 10-10:30 بجے تھے تو سباتو ہمیں اپنی شاندار مرسیڈیز میں بٹھا کر زپاٹا کی کوٹھی پر لے گیا. شہر سے باہر سمندر کنارے زپاٹا کا شاندار بنگلہ تھا. زپاٹا جانے کی تیاری کر رہا تھا. ایک بریف کیس میں ضروری کاغذات ڈال رہا تھا. ہم دونوں کو دیکھ کر اس نے بازو ہوا میں لہرایا اور بولا کم آن سینوریو، کیا پیوگے؟ لیمن، جنجر یا اسپرائٹ؟ باقی بڑا زندہ دل آدمی تھا یہ زپاٹا. کسی فلم کا ولن لگتا تھا. چوڑے شانے، مضبوط کثرتی جسم، اونچا لبا قد، سرخ ٹی شرٹ اور گہری سیاہ پتلون، گلے میں زرد ریشمی مفلر. سباتو نے ہمیں اس کے حوالے کیا اور چلا گیا. زپاٹا نے ہمارے پاسپورٹ بھی ہم سے لے کر اپنے بریف کیس میں رکھے. ہمارے لیے ٹھنڈا کوکا کولا لے آیا جو شیشے کے نہایت ہی حسین اور نازک گلاسوں میں تھا. برف کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں اس میں تیر رہی تھی. ہم مزے سے کوک پینے لگے. زپاٹا نے بریف کیس تیار کر کے اپنی زبان میں نوکر کو ضروری ہدایات دی. جیب سے سنہری چھلے والی چمکیلی چابی نکالی. اسے لہرا کر ہماری طرف دیکھا اور کہا سینوریو چلو تمہیں دنیا کے سب سے حسین شہر یعنی فلمی ستاروں کی دنیا ہالی ووڈ کی سیر کرواؤں. وہ زور سے کہہ کہا لگا کر ہنسا. باری باری ہمارے کندھوں کو تھپ تھپایا. ہم اس کے پیچھے چلتے بنگلے سے باہر آئے. باہر پورچ میں اس کی زرد رنگ کی 6 دروازوں والی شیورلیٹ کھڑی تھی. بڑی قیمتی گاڑی تھی. اس کے اندر فون بھی تھا. 2 وردی پوش نوکر گاڑی کے پاس کھڑے تھے. ایک نے زپاٹا کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر اگلی سیٹ پر رکھا. دوسرے نے دروازہ کھولا. زپاٹا ہم دونوں کو لے کے اگلی سیٹ پر بیٹھا. کافی کھلی سیٹیں تھی. وہاں 4-5 آدمی بیٹھ سکتے تھے. اس نے چابی گھمائی. انجن سٹارٹ ہو گیا مگر کوئی آواز نہ آئی. گاڑی اس طرح آرام سے پھسل کر پورچ سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئی جس طرح کشتی پانی پر آرام سے چلتی ہے. شیورلیٹ 70 میل کی رفتار سے جا رہی تھی مگر ہمیں کوئی دھچکے نہیں لگ رہے تھے. گاڑی ایک اونچے اور روشن گیٹ سے گزر کر ہوائی اڈے میں داخل ہوئی. یہاں زپاٹا کا اپنا 6 سیٹر ہوائی جہاز ایک طرف کھڑا تھا. کاؤنٹر پر ہماری چیکنگ ہوئی. کسٹم افسر نے مسکرا کر زپاٹا سے ہاتھ ملائے. کہا اگلی دفعہ ہالی ووڈ سے ان کے لیے ہیروئنوں کی تصویریں دستخط کرا کے ضرور لائے. زپاٹا نے ہنس ہنس کر اپنی باتیں کی. ہمارے پاسپورٹ اس شور میں انہوں نے نہیں دیکھے. بس ویزا لگا ہوا دیکھا. انہوں نے مہرے لگا کے ہمیں پاسپورٹ واپس کیے. زپاٹا کا جہاز تھوڑی دیر بعد پاپوس شہر کے اوپر آسمان کے اندھیروں میں اڑ رہا تھا. زپاٹا نے ہم سے کہا ہم سو جائیں کیونکہ وہ سارا دن سوتا رہا ہے. اس نے تو اپنی نیند پوری کر لی. سیٹیں بہت آرام دہ تھیں. پیچھے 2 بستر تھے. ہم ان پر جا کر کچھ دیر ہالی ووڈ کی باتیں کرتے رہے پھر سو گئے. میکسیکو کے اوپر سے گزر کر 6 گھنٹے ایک ساتھ آسمان پر اڑنے کے بعد ہم صبح 7 بجے امریکہ کی ریاست ایریزونا کے شہر ایڈلیڈن پہنچ گئے. یہاں ہمارے پاسپورٹ چیک کیے گئے اور امریکہ میں داخلے کی مہر لگائی گئی. زپاٹا کے ساتھ ہم نے ہوائی جہاز کے اڈے کے شاندار باتھ روم میں غسل کیا. برگر اور چکن کا ناشتہ کیا. 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد کیلیفورنیا کی طرف اڑ گئے. شام کو ہم کیلیفورنیا کی خوبصورت شہر لاس اینجلس اترے. یہاں ہم نے شام کا کھانا کھایا، کافی پی، کچھ دیر آرام کیا. زپاٹا کی مرسیڈیز کار میں سوار ہو کر ہالی ووڈ روانہ ہوئے. چوڑی شفاف سڑک پر 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد دور ایک پہاڑی پر ہالی ووڈ کے انگریزی الفاظ روشنی میں جگمگاتے دکھائی دیے. زپاٹا ہلکا سا کہا لگا کر بولا فلمی ستاروں کی حسین دنیا ہالی ووڈ آ گیا. ہالی ووڈ میں ایک خوبصورت ماڈرن شاندار شہر آباد ہے. اس جگہ دنیا کی بہترین فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے اسٹوڈیو ہیں.
हर तरफ जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाते कोठियां और बंगले, पार्क्स नजर आते हैं। सड़कों पर ट्यूबलाइट्स रोशन थी, न्यू साइंस के बोर्ड जगमगाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती थी। जपाटा का बंगला एक खूबसूरत सड़क से जरा हटकर छोटी सी पहाड़ी के दामन में था। 6-7 कमरों का दिलकश बंगला था। बाग में नहाने का तालाब था जिसमें छलांग लगाने के लिए ऊंची मचान थी। जपाटा ने हमें एक कमरा दिया जिसमें 2 बिस्तर लगे थे। इसकी खिड़की पार्क की तरफ खुलती थी। रात को जपाटा हमें एक स्टूडियो में ले गया। यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। क्लब का सेट था। गोरे गोरे चेहरे वाली अमरीकी औरतें सुनहरी बालों की विग लगाकर घूमती थी। जपाटा ने कई एक्ट्रेसों और एक्टर्स, डायरेक्टर्स से हमारा तारुफ करवाया। यहाँ बहुत रौनक थी। हम रात 12 बजे तक शूटिंग देखते रहे। फिर 1 बजे के करीब जपाटा के साथ उसके बंगले पर आए। जपाटा ने हमसे पूछा कि हॉलीवुड कैसा लगा। रेहान ने उंगलियों से वी का निशान बनाकर कहा, वंडरफुल। हम अपने कमरे में आकर कपड़े तब्दील करके स्लीपिंग सूट पहनकर बिस्तरों में लेट गए। हमारे बिस्तर के पास टेलीफोन था। सामने रंगीन टेलीविजन लगा था। बत्ती खुल करके हमने टेबल लैंप रोशन किया। कमरे में ठंडी ठंडी धीमी रोशनी फैल गई। हम कुछ देर हॉलीवुड की रंगीन दुनिया की बातें करते रहे और फिर सो गए। इस तरह हमें हॉलीवुड में एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान हमें शहर से काफी वाकफियत हो गई। सड़कें, इमारतें, कॉफी हाउस, बागों को हम पहचानने लगे। हम खुद भी कार लेके सैर को चले जाते। सारा दिन शहर और शहर के पार्कों की सैर करते। एक रोज जपाटा ने कहा कि वो आउटडोर शूटिंग के लिए टेक्सास की रियासत जा रहा है। इसे वहां 1 महीना लग जाएगा। एक नौकर इसके साथ जाएगा। एक बूढ़ा मैक्सिकन नौकर घर पर रहेगा। हम बंगले में अकेले थे। दिन भर कार लेकर शहर की सैर करते रहे। कभी हॉलीवुड के फिल्म स्टूडियो में शूटिंग देखने चले गए। जपाटा की वजह से हमें हर कोई जानता था। हमारे आने जाने पे पाबंदी ना थी। जपाटा के पास एक दूरबीन थी जो बड़ी कीमती थी और कई मील के फासले से चीजों को करीब दिखाती। ये दूरबीन जपाटा हमें दे गया। जिस रोज हम बाहर पिकनिक मनाने जाएं तो इससे दूर के मनाजिर देख सकते थे। हम कभी कभी शाम को अपने कमरे से बाहर का मंजर और दूर गुजरती कारों और इमारतों को देखते। हमें दूर के लोग बड़े करीब दिखाई देते। हमारे बंगले के आगे थोड़े फासले पर एक सड़क गुजरती थी। सड़क की दूसरी तरफ एक खुला हुआ पार्क था। पार्क के किनारे एक 2 मंजिला कोठी थी जिसमें रिहायशी फ्लैट थे। 10-12 खानदान वहां रहते थे। कभी कभी हम फ्लैट के लोगों को दूरबीन से देखते। कोई औरत कपड़े तय करती, कोई एप्रन बांधे बेस पे खाना लगाती, कोई बिजली के झाड़ू से कालीन साफ करता, कोई मर्द बिजली के शेवर से शेव बनाता, कोई बिस्तर पर लेटा अखबार पढ़ता। एक रोज बादल आ गए। बारिश का समा था। बारिश नहीं हो रही थी मगर ठंडी हवा चल रही थी। हमारे कमरे का हीटर चल रहा था। कमरा गर्म था। रेहान लिहाफ में घुसा किताब पढ़ रहा था। हमने अभी अभी शाम का खाना खाया। मैं यूं ही दूरबीन लेके खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया। पार्क और सड़क की रोशनियों में कारों और लोगों को मफलर लगाए गुजरते देखने लगा। यहाँ से जी भर गया तो मैंने दूरबीन का रुख पार्क की जानिब 2 मंजिला कोठी के फ्लैटों की तरफ कर दिया। एक खिड़की के शीशों से एक औरत बच्चे को सुलाती दिखाई दी। दूरबीन इतनी तेज थी कि मुझे इस औरत के माथे पर झूलते सुर्ख बालों की लट दिखाई दे गई। ऊपर वाले एक फ्लैट की खिड़की में एक बूढ़ा बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था और साथ ही साथ ऊँघ रहा था। मैंने रेहान से कहा, ये बूढ़ा खिड़की से नीचे गिर जाएगा। रेहान ने कोई जवाब न दिया। वो किताब पढ़ता रहा। मैंने दूरबीन का रुख पहली मंजिल के एक फ्लैट की तरफ किया। एक खिड़की रोशन हो रही थी। खिड़की बंद थी। शीशे पर मलमल का बारीक पर्दा गिरा हुआ था मगर भी तेज दूरबीन से कमरे की मेज, कुर्सियां और दीवार पर लगा क्लॉक साफ नजर आता था। मैं दूरबीन आगे ले जाने लगा कि अचानक मैं वहां ठटक गया। क्या देखता हूँ, एक लंबा तड़ंगा पक्की उम्र का आदमी नीली जर्सी पहने अपने बेडरूम से निकलकर खिड़की के पास आया। खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर अंधेरे में देखा। पार्क में कहीं कहीं मरकरी ट्यूब की रोशनी होती थी। वो बड़े पुरस्कार अंदाज से बाहर देखता था। मैंने दूरबीन वहां रोकी। न जाने क्यों मेरा दिल कहता था कुछ होने वाला है। इतने में वही आदमी पीछे हटा और दोबारा बेडरूम में दाखिल हुआ। 1 मिनट के बाद वो बेडरूम से निकला तो मैं धक से रह गया। वो एक औरत की लाश को बालों से पकड़कर घसीटता बाहर लाया। औरत के कपड़ों पर लाल लाल खून लगा हुआ था। मैंने रेहान को आवाज दी, ये देखो मैं क्या देखता हूँ। मगर रेहान सो गया। वो हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था। मैं दूरबीन से आंखों से नहीं हटा रहा था। लंबे तड़ंगे आदमी ने औरत की लाश को सामने दीवार से लगे बड़े सोफे पर डाला। दोबारा अंदर गया। एक नीले रंग की खाली बोरी उठा लाया। जल्दी जल्दी औरत की लाश को बोरी में डालने लगा। मुझे ये दहशत था। कत्ल का मंजर दूरबीन से साफ दिखाई देता था। जब नीली जर्सी वाला कातिल औरत की लाश को बोरी में बंद कर चुका तो एक बार खिड़की के पास आकर इसने पर्दा हटाया, बाहर देखा। जब इसे तसल्ली हुई कि बाहर कोई नहीं तो इसने कमरे की रोशनी बुझा दी। मैंने फौरन दूरबीन का रुख बाहर वाले दरवाजे की तरफ किया। मुझे यकीन था वो बाहर निकलेगा। वो बाहर निकल आया मगर खाली हाथ। इसने एक तरफ अंधेरे में जाकर गैराज खोला, वापस फ्लैट में चला गया। मैंने दूरबीन का रुख एक बार फिर खिड़की की तरफ किया। कातिल ने सोफे पर से औरत की लाश की बोरी उठाई। अंधेरे में मुझे इसका धुंधला साया नजर आया। ये साया दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अब मैं नीचे गेट को तकने लगा। कातिल बोरी कंधे पर रखे हुए इत्मीनान से निकला जैसे घर का सामान ला रहा हो। वो गैराज में दाखिल हुआ। गैराज में अंधेरा था। थोड़ी देर बाद कार गैराज से बाहर आई। कार गैराज के बाहर खड़ी करके उसने गैराज का दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता पार्क से सड़क पर होकर बड़ी सड़क की तरफ रवाना हुआ। मेरी जासूसी की रग भड़की। वैसे भी एक औरत को कत्ल कर दिया गया था। मेरा इंसानी फर्ज था कि कातिल को कानून के हवाले करूं। मैंने दूरबीन बिस्तर पर फेंकी। बेडरूम से निकल के पोर्च पे आया। जपाटा की कार खड़ी थी। नौकर अंदर था। मैंने इससे कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, अभी आता हूं।
कार में बैठा, कातिल की कार के पीछे लग गया। कातिल की कार छोटी थी, बाहर से निकलकर बड़ी सड़क पर भाग रही थी। मेरी कार मर्सिडीज थी। मैंने बहुत जल्द अपनी गाड़ी कातिल की कार के पीछे लगा दी और ताक़ुब शुरू किया। ज़पाटा कि इस गाड़ी के अंदर जो फोन लगा था वो 2 रोज से खराब था, नहीं तो मैं इस वक्त पुलिस को फोन कर देता। सोचा जब तक कोई सबूत हाथ ना आ जाए पुलिस को फोन करना बेकार है, क्योंकि अमेरिका में यूं ही पुलिस किसी पर हाथ नहीं डालती, ना ही इसे थाने का सीट कर ले जाती है। बल्कि हो सकता है इस बोरी में अगर औरत की लाश ना हो बल्कि किसी औरत की डमी या मुजस्मा हो। हॉलीवुड में इस किस्म के मुजस्मे का काम बहुत ज्यादा होता है, जो फिल्म में काम आते हैं। हीरोइन की जगह ये मुजस्मे ऊपर से गिराए जाते हैं। कातिल की गाड़ी खुली सड़क पर भाग रही थी, मैं इसके पीछे था। कोई 40 मिनट दूर कार एक जाने पहाड़ियों में मुड़ गई। मैंने भी कार उस तरफ मुड़ी। इस छोटी सड़क पर गाड़ियां आ रही थी, जिसकी वजह से कातिल को मुझ पर शक न हुआ कि मैं इसका पीछा करता हूँ। हॉलीवुड से जगमगाते शहर के बाहर भी सारी रात रौनक रहती है। गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, क्योंकि फिल्मी अदाकार रात को शूटिंग करने आते हैं। कातिल की गाड़ी चट्टानों में कहीं गायब हो गई। ये जगह भी आबाद थी, कोई रोशनी ना थी। मैंने गाड़ी एक जगह छुपा कर खड़ी की, बाहर आया। मुझे मालूम था कातिल यहाँ कहीं लाश को छुपाएगा या किसी गड्ढे में इसको दफन करने की कोशिश करेगा। मैं कच्ची सड़क से उतरकर जिधर इसकी गाड़ी गई थी वहां चल पड़ा। एक चट्टान के पीछे से निकला तो मुझे कुछ फासले पर झाड़ियों में टॉर्च की रोशनी नजर आई। मैं दबे पांव चलने लगा, एक तरफ आड़ में हो गया। टॉर्च की रोशनी झाड़ियों में इधर उधर पड़ रही थी, फिर रोशनी बुझ गई। जमीन पर बेलचे की आवाज आई। कातिल लाश गड्ढे में दफना रहा था। मैंने सोचा मुझे क्या करना है, अभी जाके पुलिस को इत्तला दूं या इस जगह खड़ा रहूं जब कातिल लाश दफन करके चला जाए तो पुलिस को ले आऊं, लाश बरामद करके कातिल को इसके फ्लैट से गिरफ्तार करवाऊं। दूसरा ख्याल मुझे बेहतर लगा। मैं आड़ में होकर इंतजार करने लगा कि कातिल लाश गड्ढे में दफन कर ले। बेलचे से वो जमीन खोद रहा था। मुझे झाड़ियों के पीछे कातिल का साया नजर आ रहा था। कुछ देर खामोशी रही, शायद वो लाश गड्ढे में डालकर इसे मिट्टी से भर रहा था। मैं वहां से निकलकर गाड़ी में आया। गाड़ी सड़क पर लाकर एक तरफ मैंने अंधेरे में खड़ी कर दी थी। कोई 15 मिनट के बाद कातिल की कार अंधेरे से निकलकर सड़क पर आई और अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। मैं भी इसके पीछे था। कार सीधी फ्लैट के सामने आकर गैराज की तरफ घूम गई। कातिल ने कार का दरवाजा खोलकर कार अंदर खड़ी की, दरवाजा बंद किया और अपने फ्लैट में चला गया। मैंने भी कार अपने पोर्च में खड़ी की, आकर रेहान को जगाया। कत्ल की सनसनीखेज कहानी सुनाई। वो बहुत हैरान हुआ, अफसोस करने लगा कि मैंने इसे क्यों न जगाया। फिर मैंने इसे दूरबीन के साथ सामने वाले फ्लैट में कत्ल होने की कहानी सुनाई। खिड़की पर अंधेरा छाया था। थोड़ी देर बाद रोशनी हुई। रेहान ने कहा, वो तो लंबा तड़ंगा बदमाश है, देखो एक तरफ वॉश बेसन में साबुन से हाथ धोता है। मैं भी खिड़की की तरफ आंखें सुकेड़ कर देख रहा था। मुझे धुल्ला साया नजर आया। रेहान ने कहा, वो हाथों और सोफे पर से खून के धब्बे गीले रुमाल से साफ कर रहा है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। मैं टेलीफोन की तरफ बढ़ा तो रेहान ने कहा, हमारे पास इस बदमाश को कातिल साबित करने के लिए क्या सबूत है? मैंने कहा, वो लाश जिसको ये पहाड़ियों में अभी अभी दफन करके आया है। रेहान दूरबीन से कातिल के फ्लैट की तरफ देख रहा था। अचानक वो बोला, वो दूरबीन निकाल कर बाहर देख रहा है। मैंने रेहान से दूरबीन ली, आंखों पर लगाई, देखा कातिल भी दूरबीन आंखों पर लगाए देख रहा था। वो पार्क के दरख्तों की जानिब देख रहा था जहां रोशनी थी। एकदम से कातिल ने दूरबीन का रुख हमारे बंगले की तरफ किया, फिर वो टटक गया। मैं अपनी दूरबीन में इसका चेहरा देख रहा था जिस पर ताज्जुब और हैरानी थी। इसने भी मुझे दूरबीन लगाकर अपनी तरफ देखते हुए देख लिया था। मैंने कहा, वो हमारी तरफ देख रहा है। रेहान ने चिल्लाकर कहा, नीचे बैठो। मैं जल्दी से खिड़की से नीचे हो गया, फिर झुककर रेहान के बिस्तर पर आया। रेहान ने खिड़की में से चोरी चोरी बाहर देखते हुए कहा, ये अच्छी बात नहीं, इसने हमें देख लिया। हम दूरबीन से इसकी सारी हरकत नोट कर रहे थे। इसे यकीन हो गया होगा कि हमने इसको औरत की लाश बोरी में बंद करते देखा है और गाड़ी में डालकर ले जाते भी देखा है। मैंने कहा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। करीबी पुलिस स्टेशन का नंबर वहां लिखा था। मैंने फोन पर पुलिस को बताया, हमारे सामने वाले फ्लैट में कत्ल हुआ है, कातिल भागने की तैयारी करता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमारे बंगले का नंबर नोट किया, कहा वो पहुंच रहा है। पुलिस आ रही है। रेहान, बस अब ठीक है, लेकिन वो आदमी तो नजर नहीं आ रहा। वो खिड़की से पीछे हट गया है। मैंने खिड़की की आड़ में बैठकर देखा, खिड़की की रोशनी बुझ गई थी, अंधेरा छा गया। मैंने रेहान से कहा, इसने हमें देख लिया है, अब वो फरार हो जाएगा। मैं इसके फ्लैट के दरवाजे पर नजरें जमाई था। मैंने रेहान को खबरदार किया, जो ही कातिल गेट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठेगा हम इस पर हमला कर देंगे। मगर कातिल के फ्लैट का दरवाजा उस तरह बंद था। इतने में पुलिस की गाड़ी शोर मचाती हमारे बंगले पर आकर खड़ी हुई। 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी में थानेदार और पुलिस का जासूस इंस्पेक्टर और दूसरी में पुलिस के सिपाही तेजी से बाहर निकले। वो हमारे बंगले की तरफ बढ़े। मैंने खिड़की से चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर, कातिल का फ्लैट वो सामने है, कातिल फरार होने की कोशिश में है। इंस्पेक्टर ने सामने वाले फ्लैट की तरफ देखा। इंस्पेक्टर और थानेदार हमारे पास आए। थानेदार ने सामने इशारा करके कहा, इस सामने फ्लैट में कत्ल हुआ है। जी हाँ, एक लंबे तड़ंगे आदमी ने अपनी बीवी को हलाक किया, इसकी लाश वीराने में जमीन में दबाई। थानेदार ने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर, मालूम होता है तुम कोई डरावना ख्वाब देख रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं, सामने वाले फ्लैट में इस इलाके की पुलिस का सबसे बड़ा अफसर कैप्टन जॉर्ज रहता है। मैंने कहा, वो कोई भी है, इसने हमारी आंखों के सामने अपनी बीवी की लाश को बोरी में बंद किया, हम दूर से सब देख रहे थे। थानेदार ने कहा, मगर कैप्टन जॉर्ज तो शादीशुदा नहीं, इसकी कोई बीवी नहीं। रेहान बोला, तो फिर वो इसकी बीवी नहीं होगी, कोई और औरत होगी, कोई रिश्तेदार औरत। थानेदार ने सर झटक कर कहा, मिस्टर, तुम्हारे पास कोई सबूत है? हम कैप्टन जॉर्ज को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप लोग
पहाड़ियों में हमारे साथ चल के गड्ढे से लाश निकाल लें। थानेदार ने कहा, ये भी देख लेते हैं। इस दौरान में जासूस इंस्पेक्टर किड बिल्कुल खामोश था। वो हमारी तरफ गौर से देख रहा था। वो छोटे कद का था, बाल बिखरे थे, आंखों में चमक थी। इतने में पार्क की दूसरी तरफ कातिल के फ्लैट में रोशनी हुई। फिर हमने देखा वही लंबा तड़ंगा कातिल फ्लैट के गेट से निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। पार्क से गुजरकर वो हमारे बंगले के पोर्च में आया। वो स्लीपिंग गाउन में था, चेहरा ऐसे था जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। बड़ा चालाक कातिल था। इसे सामने देखकर पुलिस के सिपाहियों और दोनों इंस्पेक्टर्स ने सलूट किया। कैप्टन जॉर्ज यानी कातिल ने हैरानी से पूछा, यहाँ क्या गड़बड़ है? मैं कुछ कहने वाला था कि थानेदार ने मुझे खामोश रहने को और फिर बोला, सर इन लड़कों ने हमें ख्वामखा आधी रात को परेशान किया है। कोई बात नहीं, कह रहे थे इधर कोई कत्ल हुआ है। कत्ल? यहाँ कातिल ने इस तरह पूछा जैसे इसे कुछ पता ना हो। वो बड़ा मासूम है, कहने लगा कि कत्ल तो तुमने किया है, मगर थानेदार ने एक बार मुझे रोक दिया। 2-3 बार कातिल ने हमारी तरफ घूर के देखा, फिर बोला, कहाँ कत्ल हुआ है कोई? थानेदार बोला, सर इन लड़कों ने कोई बुरा ख्वाब देखा है, हमें गलत इत्तला दी है, आप आराम करें, हम जाते हैं। फिर कातिल कैप्टन जॉर्ज पुलिस के सलूट का जवाब देकर वापस चले गया। इसके जाते ही थानेदार ने कुछ नाराज होकर हमें हिदायत की, हम सो जाएं, आइंदा पुलिस को परेशान न करें। इस पर इंस्पेक्टर जासूस किड ने मेरे कंधे पर नरमी से हाथ रखकर कहा, मिस्टर तुम्हारा नाम इमरान है? जी। वो बोला, मिस्टर इमरान, सुबह नाश्ते के बाद कॉफी तुम्हारे पास आकर पीऊंगा, क्या तुम मुझे कॉफी पिलाओगे? मैंने खुश होकर कहा, क्यों नहीं सर, हमें खुशी होगी। जासूस किड मुस्कुराया, पुलिस के साथ गाड़ी में बैठ के चला गया। रेहान कहने लगा, कमाल है, ये पुलिस का अफसर ही कातिल है। अगर थानेदार ने ये बात न बनाई होती तो। मैंने कहा, हम जासूस इंस्पेक्टर किड से बात करेंगे, सुबह देखेंगे, अब सो जाते हैं। सामने वाले कातिल के फ्लैट की रोशनी गुल हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अपने अगले खत में बयान करूंगा। आपका भाई इमरान। हॉलीवुड, अमेरिका। प्यारी बहन, सलाम आदाब। दूसरे दिन नाश्ते के बाद इंस्पेक्टर किड आया। इसके होंठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। शायद ये मुस्कुराहट हमेशा इसके होंठों पर रहती थी और किसी को पता नहीं चलता था कि वो खुश है या संजीदा और किसी गहरे मसले पर गौर करता है। इसने एक लंबा कोट पहन रखा था, सियाह घुंघराले बाल रात की तरह बिखरे थे। इसने अपनी छोटी सी गाड़ी हमारे बंगले के पीछे खामोशी से खड़ी की। आते ही बाजू फैलाकर कहा, मेरे दोस्तों, क्या कॉफी गर्म है? जरूर जरूर गर्म है, रेहान ने कहा। इसकी प्याली में कॉफी उंडेलने लगा। इंस्पेक्टर किड ने दूरबीन आंखों के साथ लगाई और खिड़की की ओट में खड़े होकर कातिल के फ्लैट की तरफ देखने लगा। क्या इस जगह से तुम लोगों ने तमाशा देखा? हमें बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इंस्पेक्टर किड ने हमारी बात पर एतबार किया और ये यकीन किया कि हमने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा। मैंने कहा, हाँ इंस्पेक्टर, इस खिड़की से हमने कातिल को देखा कि लाश बोरी में बंद करके वो बाहर निकला। मैंने गाड़ी में उसका पीछा किया, फिर मैंने पूछा कि लाश बरामद हुई। इंस्पेक्टर किड ने दूरबीन मेज पर रखी, सोफे में धंस गया, कॉफी की चुस्की लेकर बोला, मेरे बच्चों, हमने पहाड़ियों का सारा इलाका छान मारा मगर लाश कहीं न मिली। फिर वो मेरी तरफ गहरी नजर से देखकर बोला, इमरान, तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ कातिल ने लाश छुपाई? क्यों नहीं, मैं आपको ठीक इस जगह ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर किड कॉफी पीने लगा, फिर बोला, कातिल पुलिस का आला अफसर है, इस पर कोई हाथ नहीं डालेगा। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुम सच कहते हो। अगर कातिल की कोई बीवी नहीं तो भी इसने एक औरत को जरूर कत्ल किया है। मैंने आने से पहले इसके हमसायों से फोन पर मालूम किया कि इसके यहाँ गांव से एक रिश्तेदार औरत आके ठहरी थी। कॉफी खत्म करके इंस्पेक्टर ने प्याली मेज पर रखी, गहरा सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। इमरान, आओ मेरे साथ। मगर पिछले दरवाजे से निकलना, मेरी गाड़ी पिछले दरवाजे पर खड़ी है। रेहान को हमने साथ लिया। हम गाड़ी में बैठकर शहर के बाहर वाली पहाड़ियों की तरफ रवाना हुए। दिन की रोशनी में हर चीज साफ नजर आती थी। मैं सीधा वहां गया जहाँ रात को गाड़ी खड़ी की थी। फिर इंस्पेक्टर को लेकर दुरुस्त अंदाजे के मुताबिक इन झाड़ियों के पास आया जहाँ रात को गड्ढा खोदकर लाश दफन की गई थी। इस जगह गड्ढा खोदा गया था, लाश दबाई गई थी। वहां जमीन नरम थी, ऐसा लगता था किसी ने मट्टी खोद कर दोबारा जमीन बराबर कर दी। इंस्पेक्टर किड ने कहा, इस तरह हम रात को नहीं आए थे। इंस्पेक्टर किड बेलचा अपनी गाड़ी में रखवा कर लाया था। हमने जमीन खोदना शुरू की। जमीन काफी खोदी मगर अंदर से लाश ना निकली। इंस्पेक्टर किड ने रुमाल से पसीना पोंछा और कहा, कातिल बहुत चालाक निकला, इसने लाश रातों रात यहाँ से गायब कर दी। इससे मालूम था तुमने दूरबीन से इसे लाश ले जाते देख लिया। हो सकता है तुम इसका पीछा करते यहाँ तक आए हो। अब जमीन खोदना बेकार है। वो वापस चला गया। वापस आके हमने हाथ मुंह धोया। इंस्पेक्टर किड ने अपनी प्याली में कॉफी उंडेली, कॉफी पीने लगा, फिर बोला, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। हम चौंक पड़े। ये पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? रेहान ने कहा, क्यों बाजी, इतने अन्नी लगी हुई है? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, हमारी जिंदगी को खतरा क्यों है? इंस्पेक्टर कहने लगा, मेरे बच्चों, कातिल जानता है कि इसे अगर कोई फांसी के तख्ते या बिजली की कुर्सी तक पहुंचा सकता है तो वो तुम हो, क्योंकि तुमने इसे कत्ल करते देखा है, तुम इसके गवाह हो। रेहान ने कहा, मगर इसने तो लाश गायब कर दी। अब हम पुलिस को कोई सबूत नहीं दे सकते। अब हम से इसे भला क्या खतरा? इंस्पेक्टर मुस्कुराया, मिस्टर रेहान कातिल चालाक है। इसे मालूम है जो लड़का पहाड़ियों में इसे लाश दफन करते देख सकता है वो लाश गायब करते भी देख सकता है। हो सकता है तुमने वो जगह भी देख ली हो जहाँ इसने लाश दोबारा दफन की या जाया की।
میں نے کہا انسپیکٹر اگر اس نے لاش ضائع کر دی تو پھر اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. انسپیکٹر بولا یہ ٹھیک ہے لیکن تم اس ملک کے قاتلوں سے واقف نہیں ہو. یہاں کے قاتل پولیس سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس شخص سے خوف کھاتے ہیں جس نے انہیں قتل کرتے دیکھا ہو یعنی جو گواہ ہو. ریحان نے کہا تو پھر ہم آج ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں. ہم تو ٹورسٹ ہیں, ہم امریکہ کی کسی دوسری ریاست میں چلے جاتے ہیں. انسپیکٹر کہنے لگا یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اس طرح قاتل تمہیں کسی بھی جگہ آسانی سے قتل کر دے گا. تمہیں اس وقت تک پولیس کی حفاظت میں رہنا ہے جب تک لاش برآمد نہ ہو اور قاتل کو گرفتار نہ کر لے. اس دوربین نے ہمیں عجیب مصیبت میں پھنسا دیا. نہ ہم آگے جا سکتے تھے نہ آزادی سے وہاں رہ سکتے تھے. انسپیکٹر نے ٹھیک کہا. قاتل ایک مکار اور تجربے کار پولیس افسر تھا. وہ ہمیں آسانی سے کہیں قتل کرا سکتا تھا, اس لیے ہمیں پولیس کی سخت حفاظت کی ضرورت تھی. لیکن سوال یہ تھا آخر ہم کب تک پولیس کے پنجرے میں رہیں گے؟ اگر انسپیکٹر کیٹ عورت کی لاش برآمد نہ کر سکا تو کیا ہم ہمیشہ پولیس کے پاس ہی پڑے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں آگے بھی جانا تھا مگر اس وقت معاملہ بہت نازک تھا. انسپیکٹر کٹ کہنے لگا میں 2 پولیس والوں کو تمہاری حفاظت پر لگاتا ہوں. وہ عام کپڑوں میں ہوں گے, تمہاری حفاظت کریں گے. ریحان نے کہا کیا ہم بنگلے میں قید ہوں؟ انسپیکٹر نے کہا نہیں. یہ کون کہتا ہے, تم شہر میں جہاں چاہو جاؤ, وہ دونوں باڈی گارڈ تمہیں چھپ کر تمہاری حفاظت کریں گے. میں نے کہا اس سے تو بہتر ہے کہ تم قاتل کی نگرانی کرواؤ. انسپیکٹر مسکرایا. تمہارا کیا خیال ہے, ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. میں اپنے 2 جاسوس اس کے پیچھے لگا چکا ہوں پر تمہاری حفاظت ضروری ہے. ہو سکتا ہے قاتل کے اور ساتھی ہوں, وہ ان کے ذریعے تمہیں قتل کرائے. ہم ایک انوکھی مصیبت میں پھنس گئے. لیکن انسپیکٹر کٹ ہمارا ہمدرد تھا, وہ مائی جان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا, اس لیے ضروری تھا کہ ہم اس کی ہدایت پر عمل کرتے. انسپیکٹر کٹ نے 2 پولیس والے ہماری حفاظت پر لگائے. ان کا ہم سے خفیہ تعارف کروایا. ان میں سے ایک نے آئس کریم بیچنے والی کی ریڑھی ہمارے بنگلے کے سامنے پارک میں لگائی. جیب میں بڑا پستول رکھ کر ہماری نگرانی کرنے لگا. دوسرا فقیر بن کر بنگلے کے سامنے والی سڑک پر ایک کمرے کے نیچے اپنا ہیڈ فٹ پاتھ پر رکھ کے بیٹھ گیا. جو کوئی گزرتا اس کے ہیڈ میں ایک کاستے کر ڈال دیتا. امریکہ کے فقیر ایسے ہوتے ہیں. ہمارا دوست اور میزبان سپاٹا شوٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا. 20 کے آنے میں 20 روز باقی تھے. انسپیکٹر کٹ نے ہمیں خاص طور پہ ہدایت کی کہ بنگلے کے دونوں نوکروں کو ہرگز نہ بتائیں کہ پارک میں آئس کریم والا اور فٹ پاتھ پر فقیر ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. 2 دن گزرے. اس عرصے میں قاتل کی کھڑکی بند تھی. رات کو بھی کھڑکی بند رہتی. ہمیں دوربین سے کچھ نظر نہ آتا. ہم نے سوچا ذرا اپنی حفاظت پر لگائے پولیس والوں سے جا کے ملاقات کریں. ہم پہلے فٹ پاتھ کے فقیر کے پاس گئے. وہ بڑے مزے سے فٹ پاتھ پر آلتی پالتی مارے مست فقیر بن کر بیٹھا اونگ رہا تھا. اس کا ہیڈ اس کے آگے پڑا تھا. ریحان نے کہا جو خود مست ہو کر پڑا ہے وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا. ہم نے چاندی کا ایک سکہ اس کے ہاتھ میں ڈالا تو اس نے آنکھیں بند کیے جیب سے ریوالور نکال کر آہستہ سے کہا خبردار پھر میرے پاس نہ آنا, واپس بنگلے میں جاؤ. ہم دنگ رہ گئے کہ آنکھیں بند کر کے ہمیں دیکھ رہا تھا. وہاں سے بنگلے پر آئے. ریحان بولا بڑی بوائے یہ ہوشیار ہے, اب تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری پوری حفاظت کرے گا. اب ہم آئس کریم والے کے پاس پارک میں جائیں گے. کچھ بچے اس سے آئس کریم خرید رہے تھے. اس نے کاغذ کی ٹوپی سر پر پہن رکھی تھی, بالکل سرکس کا مسخرہ لگتا, بچوں سے ہنس کے باتیں کرتا. ریحان نے بھی آئس کریم خریدنے کے لیے پیسے دیے. اس نے ہماری طرف دیکھ کر مسکرایا, پھر ہمارے منہ کے قریب آ کر بولا اب ادھر آئے دوبارہ مت آنا. ہم واپس بنگلے پر آئے. سوچا یہ تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم شہر کی سیر کرتے ہیں. ہم شام کے وقت شہر میں آئے. پہلے اسٹوڈیو گئے, پھر کیا دیکھتے ہیں اس کے گیٹ کے پاس وہی آئس کریم والا پہلے سے کڑا لوگوں کو آئس کریم بیچ رہا ہے. ہم حیران ہوئے. اسٹوڈیو کی سیر کرنے کے بعد شہر کی ایک بار رنگ سڑک پر ایک ہوٹل میں آئے اور کافی پینے لگے. ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے. ہمارا دوست محافظ فقیر فٹ پاتھ پر ہیڈ رکھ کے مست بنا بیٹھا تھا. ریحان کہنے لگا یار یہ تو بڑے زبردست باڈی گارڈ ہیں, خدا جانے ہوا میں اڑتے یہاں پہنچ جاتے ہیں, کچھ سمجھ نہ آتا. ہم ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پینے لگے. میں نے ریحان سے کہا یہ لوگ اکیلے نہیں, مخصوص پولیس ان کے ساتھ ہے. جب ہم بنگلے سے نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں آ جاتے ہوں گے. ریحان نے کہا لیکن انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم اس جگہ آ رہے ہیں؟ یہی تو ایک ذہین محافظ کا کام ہے, وہ اندازہ لگائے کہ ہم کہاں ہیں اور اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے. اب ہمیں یقین تھا قاتل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ضرور قاتل ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں کوئی نہ کوئی اسکیم بنا رہا ہوگا. آخر وہ ایک پولیس افسر تھا, کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا. ہم سیر بھی کرتے, ہالی ووڈ کے اسٹوڈیوز میں جا کے شوٹنگ دیکھتے, بنگلے میں آ کر پنگ پونگ اور ٹینس کھیلتے. انسپیکٹر کٹ کبھی کبھی ہم سے فون پر بات کرتا, بتا دیتا کہ وہ قاتل کی نگرانی کر رہا ہے. وہ خود ہمارے پاس نہ آتا کہ قاتل کو شک ہو جائے گا. ایک روز دوپہر کا کھانا کھا کے ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے رسالہ دیکھ رہے تھے. دروازے کی گھنٹی بجی. میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا. 2 آدمی نیلی وردیوں میں کھڑے مسکراتے تھے. مجھے دیکھ کر اس نے بڑی نرمی اور ادب سے کہا معاف کرنا دوست, ہم ٹیلی فون کے محکمے سے آئے ہیں. آپ کے علاقے کے ٹیلی فون کے تار میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. ہم آپ کا فون چیک کرنا چاہتے ہیں, کیا اجازت ہے؟ دراصل ہمیں کئی لوگوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ ان کا ٹیلی فون کام نہیں کرتا. میں نے واپس مڑ کر کہا چیک کر لو بھائی. وہ سامنے پڑا فون. جو ہی میں واپس مڑا میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا. ایک آدمی چھلانگ لگا کر ریحان کو دبوچنے لگا. دوسرے نے پستول میرے سر پر لگایا. اگر ذرا آواز نکالی تو گولی مار کر بھیجا پاش پاش کر دوں گا. ریحان نے میری طرف دیکھا اور میرے ریحان کو دیکھنے لگا. ہم سمجھ گئے یہ قاتل کے پیچھے آدمی ہے. آخر قاتل ہمارے محافظوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو؟
तुम्हें हमारे साथ बाहर ट्रक पे चुपचाप चल के बैठना है। अगर तुमने भागने की कोशिश की या आवाज निकाली तो दोनों की लाशें बदले के बाहर पड़ी होंगी। आखिर हम मुसीबत में फंस गए। मजबूरन हम ड्राइंग रूम से बाहर निकले। बाहर एक ट्रक खड़ा था जो चारों तरफ से बंद था। इस पर टेलीफोन लॉस एंजलिस लिखा था। इसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। उन्होंने हमें दरवाजे से अंदर धकेल कर दरवाजा बंद किया। फौरन ट्रक स्टार्ट होकर एक तरफ घूम गया। पहियों से चीख की आवाज आई, साथ ही 1 2 3 गोलियों के धमाके हुए। ट्रक थोड़ी दूर जाकर रुक गया। गोलियों ने इसके पहिए फाड़ दिए थे। ट्रक से फायरिंग शुरू हुई। हम ट्रक के अंदर सरबाहों में छुपाकर बैठ गए। हमारे मुहाफिज हमारी मदद को आए। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। ट्रक के आगे शीशे में एक गोली आकर टकराई। इसने इसे तोड़ दिया और एक गुंडा हलाक हो गया। वो एक तरफ लुढ़क गया। फायरिंग बंद हुई। दूसरे ने हथियार डाल लिए। ट्रक का दरवाजा खुला। आइसक्रीम वाला और फुटपाथ वाला फकीर दोनों खड़े थे। रिवॉल्वर इनके हाथों में थे। अंदर कोई तीसरा आदमी तो नहीं? बड़ी रेहान चट बोला, नहीं, हम सिर्फ 2 हैं। इतने में पुलिस वहां आई। इंस्पेक्टर किड इनके साथ था। ट्रक वाला गुंडा जो पुलिस ने अपने काबू में कर लिया था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर किड हमें बंगले पर ले आया। इसने हमसे सारी कहानी पूछी। हमने जो कुछ हुआ था इसे बता दिया। वो बोला, इस तरह तुम्हें किसी गैर को अंदर नहीं आने देना चाहिए, लेकिन खैर आदमी धोखा खा जाता है। बहरहाल हमारे दोनों आदमी बड़े काम आए। उन्होंने अपना फर्ज निभाया। अब वो किसी दूसरे बेस पे तुम्हारे आसपास रहेंगे। मैंने इससे पूछा, आखिर हमारी जान इस मुसीबत से कब छूटेगी? कातिल कब पकड़ा जाएगा? इंस्पेक्टर किड मुस्कुराया। इसने सिर्फ इतना कहा, जब लाश मिल जाएगी। लाश बहुत जल्द मिलने वाली है। बस चंद रोज और तकलीफ उठाओ। शुक्रिया। इंस्पेक्टर किड हमसे हाथ मिलाकर चला गया। अब हम होशियार और चौकन्ना हो गए। किसी ऐरे गैरे को बंगले के अंदर नहीं आने देंगे। दोनों नौकरों को ये कह दिया है कि इलाके में डाके और चोरियां हो रही हैं। किसी को बंगले में मत आने देना। हमने दूसरे दिन अपने बॉडीगार्ड को इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इस बार उन्होंने ऐसा भेस बदला कि हम इन्हें पहचान ना पाए। एक शाम मौसम खराब था। काली घटा आसमान पर छाई थी। बूंदाबांदी होने लगी। तेज ठंडी हवा हड्डियों को यख कर रही थी। हमने खिड़की बंद की। चाय लेकर बैठे, बातें करने लगे। देखें यहाँ से कब निकलना नसीब होता है। जपाटा के आने में 6 दिन थे। हमने सोचा जपाटा से हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि इंस्पेक्टर ने हमें मना किया है। इतने में हमारा नौकर भागा भागा कमरे में आया। रेहान ने पूछा, खैरियत क्या हुआ? नौकर ने कहा, सर, आपके जो 2 बॉडीगार्ड है उन्होंने कहा है कि बंगले पर गुंडों ने जबरदस्त हमला करना है। इस चीज का बहुत खतरा है, इसलिए जल्दी जल्दी औरतों का लिबास पहनकर यहाँ से निकलें। अगले चौक में वो आपका इंतजार करते हैं। हम चाय वहीं छोड़कर जल्दी से उठ खड़े हुए। रेहान ने कहा, मगर हम औरत बनकर यहाँ से क्यों निकलें? नौकर जल्दी से बोला, सर, देर न करे, जासूस ने यही कहा है। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ से निकलते गुंडे पहचान ले। जपाटा के बंगले में हर किस्म के सिंगार का सामान हर वक्त होता था। हमने जनाना लिबास पहना, सर पर सुनहरी बाल की विग लगाई, अमरीकी मेमो वाला स्कर्ट पहना, ऊंची गुलगापी पाँव में पहनी। नौकर के साथ बंगले के पिछले दरवाजे से निकले। शाम के अंधेरे में एक कार दरख्तों के पास खड़ी थी। हम इसमें बैठे। कार जू से रवाना हो गई। 1 मिनट के बाद कार खुली सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। अगली सीट पर एक मोटी गर्दन वाला टार्जन किस्म का आदमी बैठा था। मैंने पूछा, हमारे मुहाफिज कहाँ हैं? इस मोटी गर्दन वाले टार्जन ने गर्दन मोड़कर पिस्तौल की दाल हमारी तरफ करके कहा, अब तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वो मक्कारी से हंसा। हमारे चेहरे उतर गए। हमारे साथ धोखा हुआ। हम कातिलों के जाल में फंस गए। इसने जपाटा के नौकर को अपने साथ मिलाकर हमें अपने काबू में कर लिया। हमारे मुहाफिज हमारे जनाना लिबास की वजह से धोखा खा गए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बहरहाल हम एक मुश्किल में फंस गए। कार 80-90 मील फी घंटा की स्पीड पर भाग रही थी। शाम का अंधेरा रात के अंधेरे में खुल गया। कार उड़ रही थी। खुश्क वीरान पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ सिवाय सड़क के खंभों के कोई रोशनी न थी। कार की रफ्तार हल्की होने लगी। वो एक कच्ची सड़क पर उतरी। आगे एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। हमें इसमें ठूस दिया गया। हेलीकॉप्टर हमें लेकर उड़ गया। आधे घंटे की उड़ान के बाद वो हमें एक जगह पहाड़ियों में झील किनारे लेकर उतरा। इस झील के आसपास कोई आबादी न थी। किनारे पर दरख्त थे। ऊंची ऊंची घास थी। झील किनारे पानी में एक पुरानी सी हाउस बोट खड़ी थी। हमें इसके अंदर धकेला गया। जब हम मकड़ी के फर्श वाले बोट हाउस के छोटे केबिन में गए तो छत से लालटेन लटक रही थी। सामने कुर्सी पर वही हमारे सामने फ्लैट वाला लंबा तड़ंगा पुलिस का आला अफसर गुमनाम औरत का कातिल बैठा हुआ था। वो कॉफी पी रहा था। हमें देखकर मुस्कुराया। आखिर तुम आ गए। कब तक भाग सकते थे? मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। अब तुम्हें कत्ल करके बोरी में तुम्हारी लाश बंद करूंगा, फिर इसमें पत्थर भर के झील की तह में डिपो दूंगा। वो कह कहा मारकर हंसा। बाहर निकलते अपने आदमियों से बोला, सुबह इन्हें गोली मार देना। वो चला गया। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया। हम सहम कर एक तरफ बैठ गए। लैंप की कमजोर रोशनी में एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक बात साबित हो गई कि इस कातिल ने औरत की लाश को बोरी में बंद करके इसको झील के अंदर डुबो दिया। चूंकि बोरी में पत्थर भरे हुए थे इसलिए वो पानी की तह में थी। बोरी में बंद लाश
बोरी में बंद थी इसलिए मछलियों ने इसको ना खाया होगा। मैं दिल में हंसा कि कमबख्त, मौत सामने खड़े है फिर भी रेहान की जासूसी की हिस्स इसी तरह से बेदार है। इसकी बात तो सुलह आनी सच थी। कातिल अपने मुंह से हमें ये बता गया था कि वो हमारी लाशें भी बोरी में बंद करके झील में डुबोएगा। इसका मतलब यही था। इससे पहले वाली लाश भी बोरी में बंद करके झील के अंदर डाली। ये लाश सिवाय इस औरत की किसी और की ना थी जिसको हमने अपनी आंखों के सामने बोरी में बंद होते देखा था। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन इस वक्त सबसे नाजुक सवाल ये था कि हम अपनी जान किस तरह बचाएं। हम अपनी लाशों को बोरी में बंद होने और झील की तह में डुबोने से किस तरह बचा सकते हैं। सुबह ये लोग हमें गोली मारने वाले थे। हमें वहां से फरार का कोई तरीका समझना आता, लेकिन हम वहां से फरार होने में कामयाब हुए। कैसे और क्यों कर, ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले खत में लिखूंगा। अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। आपका भाई इमरान।